Chalo, we'll revise. Meanwhile, the other students may come. Good morning, everybody. Itna thanda. Good morning, everybody. What are the first 2 points that we discussed? Were business and proprietor of the business. Do you recollect that? Bolo, business kya hai? Can you tell me? Is it non-economic activity or economic activity? What do you mean by economic activity? What is your intention for doing business? Profit kamana hai. So business is an economic activity. It can be carried on either by one person or it can be carried on by more than one person together. साथ में partnership कर सकते हैं. So either it is one person or the group of person, mainly with an intention to earn the profit. Why do you say mainly with an intention to earn the profit? Why do we say mainly with an intention to earn the profit? Can you tell me what are the other good things that a business does to the society? याद है आपको? Good quality goods and services, so they are giving a very good quality of goods and services to the society. Okay, चलो उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट थे. They create what? Employment. लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं. What is the next one? Customer satisfaction, yes, is very much connected to the better quality of goods and services. आप सोसाइटी को अगर अच्छा goods और services देते हो, it results into a customer satisfaction. और भी था बहुत important contribution. Taxes to the government, obviously. एक बिजनेसमैन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है. सो दैट इज ह्यूज रेवेन्यू और इनकम फॉर द गवर्नमेंट. सो बिजनेस वाज द फर्स्ट पॉइंट. इकोनॉमिक एक्टिविटी carried on by one or more persons, mainly with the intention to earn the profit. It is organized effort of the persons to purchase or produce and sell the quality goods and services that will satisfy the society's need. फिर हमने बात किया था proprietor. That was very simple. Who is proprietor, by the way? Owner of the business. So proprietor is a person who owns the business. जो business का मालिक होता है. अब ये proprietor क्या करता है? We have discussed that he is the person who invest the capital. पहले तो बिजनेस करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए रहता है. Who will bring that money to start the business is proprietor. So you will call that as a capital. Then he is the one who will bear the risk which is connected to the business, and therefore he is the one who is entitled to the profits of the business. तो ये आपने first definition कर लिया. What was the first definition, everybody? जहाँ पे actually दो terms है. एक है business और उसके connected था proprietor. Can you tell me likewise which was the second जोड़ी of two terms that we discussed together? Goods and fixed asset. So you recollect, मैंने ये point बहुत ही detail में आपको explain किया था कि what is the difference between goods and fixed asset. If you recollect, हमने क्या discuss किया था कि एक बिजनेस क्या क्या परचेज करता है, what all that a businessman can purchase and what is the reason that he will purchase. What is the first thing that a business will purchase is goods. Can you tell me what is the purpose? काय के लिए परचेज करते हो? रीसेल करने के लिए. तो ये आपका गुड्स हो गया. सेकंड अपन ने बात किया था इसमें फिक्स्ड एसेट. डू यू रिकलेक्ट एक बिजनेसमैन फिक्स्ड एसेट क्यों परचेज करता है? व्हाट इज द रीजन? लॉन्ग टर्म यूज. सो सेकंड पॉइंट वी डिस्कस वाज लॉन्ग टर्म यूज. बस ये दो ही था क्या? और भी यार था कुछ? शॉर्ट टर्म यूज के लिए क्या क्या होता है? बहुत सारा एग्जाम्पल अपन ने किया था. एनीबडी रिकलेक्ट्स क्विकली? सैनिटाइजर. फिर फर्नीचर इज रॉन्ग बिकॉज फर्नीचर किधर आएगा? एनीबडी कैन करेक्टर? फिक्स्ड एसेट में आएगा. फर्नीचर इज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, तो वो फिक्स्ड एसेट में आएगा. अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म यूज के लिए. एक बिजनेसमैन क्या क्या परचेज कर सकता है जिसको आप
एक्सपेंस करके बुलाते हो. एनीबडी? स्टेशनरी वॉज द वन एग्जाम्पल. फिर टिश्यू पेपर इज द अदर एग्जाम्पल. तुम लोग सब टाइम पे नहीं आ सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है तुम लोग के लिए? बिकॉज माई लेक्चर्स विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम, नॉट अ 1 minute लेट. आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो पास स्टूडेंट्स के साथ. 1 minute एक लेक्चर लेट स्टार्ट नहीं करूंगा अनलेस इट इज अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी. तो प्लीज जो भी टाइम पे, हाँ आप बोलो सर 9 बजे जल्दी होता है, 9:30 को कर दो, मैं कर देता हूँ. वैसे भी अभी कॉलेज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आई वॉन्ट अलाउ यू टू कम द लेट प्लीज. इतना डिसिप्लिन डे 1 से रखना. तुम बोलोगे सर कॉलेज नहीं है, छोड़ो यार 9 बजे बहुत जल्दी है, सर 10 बजे कर दो, मैं कर देता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन जो भी टाइम डिसाइड करेंगे, आई विल रिस्पेक्ट योर टाइम, यू हैव टू रिस्पेक्ट माई टाइम. मैं तुमको कभी वेट नहीं करवाऊंगा. दैट इज माई कमिटमेंट टू यू. सेम इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. चलो स्टेशनरी हो गया, उसके बाद टिश्यू पेपर हो गया, उसके अलावा भी सॉरी अगरबत्ती. ओके, सो अगरबत्ती रहेगा, मोमबत्ती रहेगा, मैच बॉक्स रहेगा, क्लीनिंग मटेरियल रहेगा, हैंड सैनिटाइजर रहेगा. मतलब ये इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन परचेस करता है. चाय रहेगा, कॉफी रहेगा, जलेबी फाफड़ा रहेगा, वड़ा पाव रहेगा. आई मीन ऑफिस में खाने पीने की चीजें आती रहती है. व्हाट इज ऑल दिस? व्हाई डू यू परचेस टी? व्हाट इज द रीजन? शॉर्ट टर्म यूज. 5 मिनट के ज्यादा नहीं होता है. 5 मिनट में तो ये कटिंग खत्म हो जाता है एंड दैट इज द एंड ऑफ इट. सो व्हाई हैव यू परचेस्ड इट? इट इज फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म यूज. तो उसको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बुलाते हो? उसको एक्सपेंस बुलाते हो. इसके अलावा एक फोर्थ था जो हमने डिस्कस, इन्वेस्टमेंट. एग्जैक्टली. मुझे बता सकते हो आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट करता कौन है वैसे, मुझे बताओगे? बैंक से लोन लेके मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं कि नहीं? मतलब नहीं करना चाहिए ना यार. कर सकता हूं तो ऑब्वियस है, डेमोक्रेटिक कंट्री है यार, जो करना है तुम करो. 5th फ्लोर से जंप भी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर टॉकिंग वेदर इट शुड बी डन और नो. डेफिनेटली नो. तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? हु इज द वन हु कैन डू इन्वेस्टमेंट? सरप्लस मनी रहेगा. सरप्लस मनी रहेगा तो आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट यू हैव? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप लैंड इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. वेरी गुड. और कोई ऑप्शन है? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. वेरी राइट. बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख सकते हो. और भी कुछ है? अरे इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है विच इज कॉल्ड एज अ कॉमोडिटी एक्सचेंज. सुना है कि नहीं? गोल्ड इज अ कॉमोडिटी, सिल्वर इज अ कॉमोडिटी. आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. गोल्ड का भी भाव बढ़ता है, सिल्वर का भी भाव बढ़ सकता है. गेहूं में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यू नो दैट. चावल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. There are so many commodities which are traded on a separate stock exchange. आपको पता है शेयर्स वगैरह में डील करने के लिए which are the 2 stock exchanges, the main 2 stock exchanges which are there in Mumbai? Anybody has heard the name? National Stock Exchange NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, शेयर बाजार जिसको अपन बोलते हैं. जैसे शेयर बाजार होता है ना, वैसे एक बहुत बड़ा कमोडिटी बाजार रहता है जहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, बेच सकते हो. तो बहुत सारी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. कैन यू टेल मी, आप अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करते क्यों हो? वाई डू यू इन्वेस्ट योर सरप्लस मनी? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट के लिए, रिटर्न्स के लिए. मुझे बताओ तो आपको रिटर्न्स क्या मिलता है? समझो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, देन व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट? रेंट मिलेगा. एग्रीड. अगर समझो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिलेगा. अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में से इंटरेस्ट मिलता है क्या? भाव बढ़ेगा. उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में?
अरे इन्फ्लेशन नहीं है यार, एप्रिसिएशन। आपको प्रॉफिट होता है, उसका भाव बढ़ता है, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। मेरे को बताओ तो, ये फर्नीचर मैंने काय के लिए परचेज किया? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो इसका वैल्यू का क्या होने वाला है? बिकॉज आई विल यूज दिस फर्नीचर इन माई बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये फर्नीचर का वैल्यू बढ़ेगा कि फर्नीचर का वैल्यू धीरे धीरे कम होएगा? उसको क्या बुलाते हैं मालूम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या होता है? एप्रिसिएशन। तो आपका प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ जाएगा। आगे आ जाओ। कितने बजे का लेक्चर था? यार आपको लेक्चर का टाइम पता था कि नहीं पता था? ओके, तो एड्रेस ढूंढने में थोड़ा लेट हो गया। ओके, सो प्रॉपर्टी का भाव अगर बढ़ेगा, सो यू कॉल इट एज अ एप्रिसिएशन। गोल्ड में इन्वेस्ट किया, गोल्ड का भाव बढ़ेगा, एप्रिसिएशन। शेयर बाजार में रिलायंस टाटा का शेयर्स खरीदा, शेयर का भाव बढ़ गया, एप्रिसिएशन। लेकिन ये फिक्स्ड एसेट में क्या होता है पता है? व्हाट डू डू विद द फिक्स्ड एसेट एवरीबॉडी? लॉन्ग टर्म यूज करते हो। सो मैं ये एयर कंडीशनर को बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करेगा, ये फर्नीचर को बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करेगा, ये प्रोजेक्टर, कैमरा, कंप्यूटर, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेगा। जैसे आप फिक्स्ड एसेट को बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, व्हाट हैपेंस टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दिस फिक्स्ड एसेट? इनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। तो उसके लिए अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज होता है? डेप्रिसिएशन। पूरा याद आ गया एवरीबॉडी? चलो, तो व्हाट आर द फर्स्ट टू टर्म्स दैट वी डिस्कस्ड एवरीबॉडी? द फर्स्ट वाज बिजनेस एंड प्रोपराइटर। सेकेंड टर्म हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था एवरीबॉडी? गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट। ये हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद अभी बताओ, which was the third pair of terms जो हमने डिस्कस किया था? Do you recollect everybody? Purchases and sales. You recollect purchases and sale? जब ये word use होता है, then they will use this word purchase and sale for what? Goods everybody. तो याद रखना, परचेस बोला मतलब ये गुड्स के परचेस के बारे में बात कर रहा है, सेल्स बोला तो भी ये गुड्स के बारे में बात करता है। डू यू रिकलेक्ट? योर परचेस एंड सेल कैन बी ऑन टू बेसिस। देयर आर टू टाइप ऑफ परचेस पॉसिबल। कैश परचेसेस इज द फर्स्ट वन, क्रेडिट परचेसेस विल बी द सेकेंड वन। लाइकवाइज आपको जो सेल्स रहेगा, कैश सेल्स इज द फर्स्ट वन एंड क्रेडिट सेल्स विल बी द सेकेंड वन। याद आ रहा है? दोस्त वर प्रेजेंट है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैश परचेसेस? कैश परचेसेस का मतलब मैंने कैश पे किया क्या? तो क्या पे किया? मनी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्ड कैश है ना, वो लिटरली कैश नहीं है, इज टॉकिंग अबाउट मनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैश परचेसेस? कैश परचेसेस का मतलब है मैंने गुड्स परचेस किया। क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया एंड आई हैव मेड द पेमेंट इमीडिएटली। गुड्स परचेस किया आपने और गुड्स खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा, और जो पेमेंट आपने किया, यू हैव मेड द पेमेंट इमीडिएटली। अच्छा, पेमेंट करने का बहुत तरीका है। आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेमेंट करोगे तो सिर्फ कैश पेमेंट करोगे। कैश के अलावा देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ मेकिंग द पेमेंट। See, those who are attending the first lecture today, you don't worry, because मैं लास्ट टाइम का रिवाइज करवा रहा हूँ। थोड़ा तुमको समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। फिर मैं क्या करेगा, नेक्स्ट वीक में आई विल कीप अ सेपरेट लेक्चर फॉर दोस हु हैव टेकन द लेट एडमिशन, और ये सारा मैं दोबारा करवा दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी।
try to understand as much as you can understand. फिर I will keep a separate lecture, और फर्स्ट लेक्चर से जो भी आपका मिस हुआ है वो मैं आपको पूरा अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन यहाँ से आगे प्लीज कोई लेक्चर मिस नहीं करना। चलो, सो पेमेंट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। वन इज कैश। कैन यू टेल मी, कैश के अलावा? आरटीजीएस कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट में आप आरटीजीएस कर सकते हो। नहीं रुकना, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये फिल इन द ब्लैंक में आएगा, आंसर इन वन सेंटेंस में आएगा। ये तुम्हारा अगस्त में जो यूनिट टेस्ट नंबर 1 है ना, इसमें यही सब आता है। 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा 30 मार्क के पेपर में। कितने बजे का लेक्चर था भाई? तो फिर ये कितने बजे? 9:20। दोस्त के लिए रुका हुआ था, वो आया नहीं, तो तू भी लेट आया, तो वो किधर रह गया? तेरा दोस्त किधर रह गया? सो गया था। वही मैं 9 बजे का लेक्चर 10 कर दूं क्या, कि 9 बराबर है? 10 कर दूं? अच्छा ठीक है, चलिए यार, फिर 10 बजे टाइम पे आओगे ना? नहीं, मेरे को रुकाना नहीं प्लीज। मैं तुमको 1 मिनट भी नहीं रुकाएगा। अगर मैंने तुमको रुकाया देन यू कैन डू इट, पर ऐसा कभी होगा ही नहीं। फिर 10 बजे करूंगा, फिर पक्का बराबर उठ के आ जाओगे। जिसको जिसको मॉर्निंग अलार्म का फैसिलिटी चाहिए, आई डू दैट। मैं पर्सनली कॉल करके बोलोगे सर 8:30 बजे फ़ोन करके उठाओ, तो उठा दूंगा मैं। महीने का 100 रुपया बहुत रीजनेबल है। आई विल कॉल यू एंड इंश्योर दैट यू वेक अप इन टाइम। एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट मी। यू कैन पे बाय जी पे ऑन माई सेम नंबर। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट भी लेता हूँ मैं 500 रुपये में। महीने का 100 रुपया, साल भर का 500 रुपया। अरे बहुत रीजनेबल है यार आज के ज़माने में। एक मूवी देखने जाते हो तो 500 रुपया उड़ा देते हो। और ऐसे नहीं कि मैं एक बार फ़ोन करके छोड़ देता है, 10 बार रिंग मारेगा, जब तक उठोगे नहीं फ़ोन करता हूँ मैं। बहुत अच्छा सर्विस देता हूँ। हाँ, किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो बताना प्लीज़। लेट नहीं आना बस। आई गिव ऑल द टाइप ऑफ सर्विसेज। मतलब सुबह 7 बजे का लेक्चर रहेगा ना तुम्हारा, तो 5 बजे फ़ोन करता हूँ मैं। ये कॉलेज चालू होएगा फिर तो सुबह 7 साढ़े 7 को आना ही पड़ेगा। अभी तो चलो ठीक है 10 बजे कर देता हूँ, तुम लोग बोल रहे हो तो नेक्स्ट वीक में कर देता हूँ। बट फिर कॉलेज चालू होएगा 1 महीने के बाद, फिर तो सुबह 7:30 बजे आना ही पड़ेगा। पक्का ना? स्कूल में तो मस्त सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे, तब तो तुम लोग का हैबिट बहुत अच्छा था। अभी वेकेशन में 3 महीने में थोड़ा बिगड़ गया शायद। हाँ, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलो, अरे इसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट थे। एनईएफटी करके है, इसका फुल फॉर्म बोलो तो? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके बाद आईएमपीएस। क्या बात है, बोल आईएमपीएस का फुल फॉर्म? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और भी है यूपीआई। मतलब क्या, एग्जांपल दो। जीपे से पे कर सकते हो डेफिनेटली, पेटीएम से पे कर सकते हो, भीम ऐप से पे कर सकते हो। सुना है कि नहीं? अपना इंडिया का है, इंडिया का नाम भी ऐसा ही है, भीम ऐप। पता नहीं कौन इडियट ये सब नाम रखता है, कोई भीम ऐप नाम रखता है क्या, लेकिन है। गूगल पे, पेटीएम, ऐसे सुनने में कितना मस्त लगता है। एटीएम, पेटीएम। अपना इंडिया गवर्नमेंट बोलता है भीम ऐप। दे क्रिएट लाइक दैट। ठीक है, चलो। सो ये हो गया तुम्हारा कैश परचेस। कैश परचेस का बहुत सिंपल मतलब है, यू आर परचेसिंग गुड्स एंड मेकिंग द पेमेंट ऑन इमीडिएट बेसिस, ऑन द स्पॉट। उसी दिन आप पेमेंट कर दोगे, वेरी सेम मोमेंट। एक हाथ से गुड्स खरीदा, दूसरे हाथ से पेमेंट दे दिया। पेमेंट कैसे दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे लिस्ट में तुम पेमेंट का एक मेजर मोड भूल गए हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ चेक। डू यू एग्री? चलो, सेकंड है अपना क्रेडिट परचेसेस। अपन ने उसके बाद नेक्स्ट किया था क्रेडिट परचेसेस। बोलो एनीबॉडी, व्हाट यू मीन बाय क्रेडिट परचेसेस? Payment is to be made in
फ्यूचर। आपने गुड्स परचेस किया तो इसका जो पेमेंट करना है, पेमेंट विल बी डन इन फ्यूचर। कैन यू टेल मी, if the payment is going to be done in future, what that person is called as? Anybody recollects के भूल गए? मैंने किसी से गुड्स खरीदा, मैंने अगर किसी से गुड्स खरीदा और मैंने उसको पैसा नहीं दिया, आई हैव नॉट गिवन हिम मनी टुडे, क्योंकि मैंने उधारी में गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, आई एम गोइंग टू पे द मनी आफ्टर 2 months। 2 महीने का मुझे क्रेडिट पीरियड मिला है, उधारी में खरीदा, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला, मतलब मैं वो पर्सन को पेमेंट 2 महीने के बाद करूंगा। कैन यू देयरफॉर प्लीज टेल मी व्हाट दैट पर्सन इज कॉल्ड फॉर यू? Creditor. That person is your creditor. So can you define the word creditor, everybody? Creditor is the name of the person. Can you please define the word creditor? To whom money or money's worth is payable in future. Do you agree? तो creditor का definition आपने किया था, creditor is a person to whom money or money's worth is payable in future. मुझे क्रेडिटर का और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? एक तो मैंने किसी से गुड्स खरीदा, तो अगर गुड्स खरीदा तो मुझे तुरंत से उसको पैसा नहीं देना है, मैंने उधारी में गुड्स खरीदा। बाय द वे मुझे बताओ तो उधारी में गुड्स कौन खरीदता है? हु कैन परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम होम? होलसेलर किससे खरीदता है? होलसेलर किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। तो वो तुरंत से पैसा नहीं देगा, वो बोलेगा मेरे को 2 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि गुड्स बेचने के लिए मेरे को 2 महीना लगेगा। इमेजिन करो मेरा एक रिटेल शॉप रहेगा, रिटेल शॉप में मैंने 10 लाख का गुड्स खरीदा, तो मैं बोलेगा यार 10 लाख मैं किधर से निकालेगा? ये जो गुड्स खरीदा है ना, वो डेली बेसिस पे मैं मेरे कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा, और जब मैं कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा तो पैसा आने के लिए 2 महीने का टाइम लगेगा। तो मैंने उसको बोला मुझे क्रेडिट चाहिए 2 महीने का, आई एम गोइंग टू मेक यू द पेमेंट इन फ्यूचर, मनी और मनी इज वर्थ इज पेएबल इन फ्यूचर। सो एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिटर? ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एनीबडी? बैंक से लोन लिया रहेगा, अगर आपने बैंक से लोन लिया रहेगा, सो दैट लोन इज रीपेएबल इन फ्यूचर, एंड इफ दैट लोन इज रीपेएबल इन द फ्यूचर, बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज योर क्रेडिटर। एनी अदर एग्जांपल ऑफ क्रेडिटर? Gold taken on credit basis. Okay, मतलब what you are telling is anything taken on credit basis where money is payable in future, so that person becomes our creditor. चलो उसके अलावा सैलरी का क्या एग्जाम्पल दिया था, आपको याद है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। What is outstanding salary? मतलब एम्प्लॉय ने हमें क्या दिया? कैन यू टेल मी? सर्विस दिया। क्या मैंने उसको अभी तक सैलरी पे किया कि नहीं किया? नहीं किया। मतलब दैट सैलरी इज पेएबल व्हेन? फ्यूचर। सो दैट एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट फॉर मी? डेटर। अरे पक्का बोलो यार, आधे लोग एक तो नींद में हो। गुड मॉर्निंग। कुछ लोग मस्त ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं सुबह सुबह क्या चल रहा है, आंखों के सामने कुछ तो भी चल रहा है। तुम लोग आजकल की जनरेशन इतना लेट तक क्यों सोते हो? इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी। इतने यंग एज में क्या तकलीफ तुम्हारे जीवन में आ गई है कि रात को वही नींद नहीं आती है? मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ मेरे घर में भी, मेरा बेटा भी 12th स्टैंडर्ड में ही है। मतलब वो क्या करता रहता है वो मुझे पता है, वो पढ़ता रहता है। कभी कभी वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आई मीन पता नहीं आजकल क्या क्या नई नई बीमारी निकली है।
हमारे टाइम पे फीवर वॉज अ डिसीज, नाउ ट्विटर इज अ डिसीज। पता नहीं ट्विटर में क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस स्क्रीन घूमता ही रहता है। ऐसे भी नहीं कि 2 मिनट के लिए एक स्क्रीन को ध्यान से देखा, इट जस्ट कीप्स ऑन रोलिंग एंड आई वंडर कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हो तुम लोग भी वैसे ही हो सब। अरे तुम्हारी मम्मी को नहीं बोलूंगा अभी, सच बोलो ना, थोड़े घर पे जाके तुम्हारी मम्मी को बोलेगा। क्या करते हो मतलब रात को नींद नहीं आती तो करते क्या हो? नथिंग, सोचते रहते हो, तारे गिनते हो, ऐसा नहीं है ना? हाँ वो बहुत डेंजर है। तारे गिनना मतलब प्यार में पड़ गए, इतना जल्दी मत पढ़ना। अरे करियर खराब हो जाएगा बेटा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लिख के सीए बीए बन जाओ, एमबीए बन जाओ, अच्छा करियर रहेगा। फिर प्यार में पड़ना, फिर खिड़की की बार देख के तारे गिनते रहना, दैट इज ओके। दिस इज टू अर्ली। 5 साल प्लीज ये सब गड़बड़ नहीं करना। तो करते क्या हो रात को? तारे तो गिनते नहीं हो तो क्या करते हो? टीवी देखते हो? सॉरी, रील्स देखते हो? कहाँ रहता है? इंस्टा में? अरे बाप रे, फिर जब कॉलेज चालू हो जाएगा, सुबह 7 बजे का लेक्चर रहेगा तो क्या करेगा? हाँ, तब का तब देख लेंगे सर, अभी तो आप 10 बजे करो, बाकी का बाद में देख लेते हैं। चल ठीक है यार, बट यू आर देयर ना। कुछ लोगों के चेहरे नींद वाले लग रहे हैं, बट यू फॉलोइंग ना? ओके चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड कौन सा अपन ने किया था एवरीबडी, इफ यू रिकलेक्ट? डेटार। याद है कि नहीं? बोलो डेटार क्या है? डेटार इज अ पर्सन। सो डेटार इज अ पर्सन। बोलो एनीबडी। ये पढ़ के आंसर नहीं देने का, मैं रिवीजन कर रहा है। अभी तक तो मैं खाली लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर रहा हूं। पढ़ के आंसर दोगे तो फायदा क्या है? सोच के आंसर देना है। डेटा इज अ पर्सन। बोलो एनीबडी। फ्रॉम होम। व्हाट इज रिसीवेबल? ऑलवेज मनी। मनी और मनीज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। क्लियर है? इसका कोई एग्जांपल दो तो डेटार का। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डिप्लोमेटिक आंसर मत दे, गिव मी द एग्जैक्ट आंसर। एनीबडी? डेटार का एग्जांपल, कैन यू गिव मी सम ट्रांजैक्शन वेयर यू कैन गिव मी द एग्जांपल ऑफ डेटार? क्या हुआ रहेगा जिसकी वजह से द ऑपोजिट पर्सन बिकम्स अवर डेटार? नहीं नहीं, यू टॉक अबाउट योर सेल्फ। आपके लिए सामने वाला डेटार कब बनेगा? देख, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। वन पर्सन इज माई सेल्फ एंड अदर पर्सन इज ऑपोजिट पर्सन। व्हेन विल दैट ऑपोजिट पर्सन बिकम माई डेटार इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। We will provide services on what basis? You are right. When we provide services, but you are providing services on cash basis or you are providing services on credit basis? Cash basis समझते हो ना? So, if you are providing services on cash basis, so no datar. Datar कब बनता है मुझे पता है, जब मैंने किसी को सर्विस क्रेडिट में दिया। वैसे मेरा बिजनेस सर्विस का नहीं है, मेरा बिजनेस तो गुड्स का है। सो कैन यू गिव मी द एग्जांपल रिलेटिंग टू गुड्स एवरीबडी? गुड्स के रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकते हो वेयर द ऑपोजिट पर्सन बिकम्स माय डेटा? इट इज वेरी सिंपल यार, उसको पहले भूल जा प्लीज। तुम लोग ना लैंग्वेज के ऊपर काम करो। फॉरगेट अदर पर्सन, टॉक अबाउट योरसेल्फ। तू बिजनेस कर रहा है, तेरे लिए सामने वाला बंदा डेटार कब बनेगा? व्हेन कैन आई से ही इज माय डेटार? मैं एक बिजनेसमैन हूं, व्हेन कैन आई से ही इज माय डेटार? व्हाट आई वुड हैव डन द ट्रांजैक्शन विथ दिस पर्सन बिकॉज ऑफ विच ही बिकम्स माय डेटार? एग्जैक्टली मैंने इसको, इससे गुड्स खरीदा रहेगा कि इसको मैंने गुड्स बेचा रहेगा? बेचा रहेगा। कैश बेसिस पे बेचा रहेगा कि क्रेडिट पे बेचा रहेगा? क्रेडिट पे। मैंने उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, मतलब सोचो आई एम अ होलसेलर।
ये है रिटेलर, तो मैं होलसेलर है, मैंने इसको गुड्स क्रेडिट में बेचा है। खरीदा किससे था मालूम है? खरीदा था मैंने मैन्युफैक्चरर से। आई एम अ होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदा, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड किया, और प्रॉफिट ऐड करके एज अ होलसेलर आई सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू हिम, ही इज अ रिटेलर। क्या इसने मुझे तुरंत से पैसा दिया कि इसने मेरे को तुरंत से पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। सो ही बिकम्स व्हाट फॉर मी? डेटर। डू यू एग्री? कैन स्टूडेंट बी अवर डेटर? चलो सोच समझ के आंसर देना। आई एम प्रोफेशनल एकेडमी, आई एम रनिंग माई कोचिंग क्लासेस। सोच समझ के आंसर देना। कैन स्टूडेंट बी माई डेटर और नो? व्हेन? कैन यू जस्टिफाई योर आंसर? मैं वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो लेक्चर अटेंड कर रहा है लेकिन किसी वजह से अभी तक फीस नहीं दिया। ये नॉर्मल है कि रेयर है? मतलब कोचिंग क्लास में कैसा होता है? पहले मस्त साल भर लेक्चर बैठने का, बाद में मन किया, मजा आया तो फीस भरने का। इज दैट द वे द कोचिंग क्लास, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा वर्क, और इज इट अदर वे राउंड? करेक्ट। सो पहले आप फीस भरते हो कि पहले लेक्चर अटेंड करते हो? मैं एक लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट विल यू अटेंड द लेक्चर फॉर 2 months एंड देन पे द फीस, और यूल फर्स्ट पे द फीस एंड देन अटेंड द लेक्चर? तो अभी तुम्हारे एंगल से कोचिंग क्लास तुम्हारे लिए क्या है? तुम स्टूडेंट हो, सोच समझ के आंसर देना। तुमने कोचिंग क्लास में फीस भर दिया, सो हु इज दैट कोचिंग क्लास फॉर यू? Debtor. Why? What is receivable? Services are receivable in future. So coaching class will be your debtor, क्योंकि आपने पहले फीस पे किया, बाद में आपको सर्विस मिलेगा। सो कोचिंग क्लास इज योर डेटर। डू यू एग्री? मूवी देखने जाते हो कि नहीं? किधर से टिकट बुक करते हो? बुक माई शो में करते हो ना? तो बुक माई शो में तुमने टिकट बुक किया। कैन यू टेल मी the theater is what for you? Why? We have paid the money. What we have yet not received? Services. समझो किसी वजह से वो शो कैंसिल हो गया, थिएटर ने वो शो कैंसिल कर दिया, तो रिफंड मिलेगा ना? So either services are receivable in future or money is receivable in future. अपन फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, I'll give you so many examples. फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो पहले क्या करते हो? कि पहले बोलो कि मेरे को फ्लाइट में बिठा, यहाँ से दिल्ली लेके जा, दिल्ली उतर के पैसा दूंगा, ऐसे होता है क्या? तो क्या करोगे? पहले टिकट बुक करोगे। सर्विस पहले मिलेगा कि बाद में? सो व्हाट दैट इंडिगो एयरलाइंस, तुमने इंडिगो का टिकट बुक किया, व्हाट दैट इंडिगो एयरलाइंस इज फॉर यू? डेटर। होटल में खाना खाने जाते हो कि नहीं? हेलो, तो जाते हो तो होटल में खाना खाया, खाना खा के बिल आया, तुमने पैसा दे दिया। अब मेरे को सोच समझ के बताना, दैट होटल इज व्हाट फॉर यू? डेटर और क्रेडिटर? नथिंग इज अ करेक्ट आंसर। व्हाई क्रेडिटर? तूने पहले पैसा दिया क्या? तो अरे पहले मतलब वो दोनों चीज एक ही दिन पे हुआ कि ट्यूसडे को खाना खाया ने थर्सडे को पैसा दिया? ऐसा कोई होटल रहेगा तो मेरे को एड्रेस भेज देना, अपन सब लोग जाएंगे उधर, पार्टी देगा मस्त तुमको। ट्यूसडे को जाते हैं, मस्त दबा के खाना खाते हैं, थर्सडे फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसा कोई होटल है क्या? नहीं है ना? तो होटल में जब भी जाके खाना खाते हो, सो हु इज डेटर एंड हु इज क्रेडिटर? इज देयर एनी रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर बिटवीन द टू पीपल? यस और नो? Why? Because there is nothing on credit basis. Please understand. तुमको मैं डे टू डे लाइफ में 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं, एंड योर माइंड हैज टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। आप किसी शॉप में जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, कैन यू टेल मी, अगर आप शॉपिंग करते हो, लाइफस्टाइल में चले गए,
आरमॉल में गए, आरमॉल में जाके लाइफस्टाइल में चले गए, क्रोमा में चले गए, कुछ खरीदा, खरीद के तुरंत से पेमेंट दे दिया. इज देयर एनी रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर बिटवीन यू एंड दैट क्रोमा और अ लाइफस्टाइल? व्हाट्स योर आंसर? नो. अमेजोन में परचेज करो. नावेडेज बहुत लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं. समझो मैंने अमेजोन में गुड्स परचेज किया और अमेजोन में परचेज करके पेमेंट कभी करते हो? कैश ऑन डिलीवरी लिया, बरोबर है? तो तुमने कैश ऑन डिलीवरी ले लिया, अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड अमेजोन? नथिंग. फिर अमेजोन वाला डिलीवरी देने के लिए आया, डिलीवरी देने के लिए आया, उसने तुमको डिलीवरी दिया, तुमने उसको तुरंत से कैश पे कर दिया. सीओडी, द कैश ऑन डिलीवरी. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड अमेजोन नाउ? नथिंग. वो गुड्स तुमको पसंद नहीं आया, 2 दिन के बाद तुमने वो गुड्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि समझो तुमने टी शर्ट परचेज किया रहेगा, साइज बराबर नहीं है, तुमने वो गुड्स उसको रिटर्न कर दिया. नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन यू एंड अमेजोन? व्हाट इज द रिलेशन? अमेजोन इज व्हाट फॉर मी? डेटर. व्हाई अमेजोन इज डेटर फॉर मी? आइदर मेरे को वो गुड्स रिप्लेस करके देगा, सो मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, और अगर रिप्लेस करके नहीं दिया तो वो मुझे क्या देगा? पैसा वापस देगा. दोनों केस में आइदर मनी और मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर एंड देयरफॉर इज माय डेटर. हेलो, आर यू देयर? ईएमआई पे लिया, देन ऑपोजिट पर्सन इज योर क्रेडिटर. देख तू जाएगा ना, अभी क्रोमा में चला जा, एप्पल का मोबाइल खरीदना नहीं है, फालतू कॉस्ट है, बट समझो तेरे को खरीदना है, एप्पल का मोबाइल खरीदेगा ना, उसमें तेरे को 24 ईएमआई देते हैं ये लोग कस्टमर को ल्योर करने के लिए. 1.5 लाख का मोबाइल देंगे, बोलेंगे महीने का 5,000 भरो, ऐसा 3 साल का ईएमआई दे देंगे. सो कैन यू टेल मी, अगर तूने मोबाइल ईएमआई में खरीदा, सो कैन यू टेल मी क्रोमा जिससे तूने ईएमआई पे खरीदा है, कैन यू टेल मी व्हाट क्रोमा इज फॉर यू? क्रेडिटर. हेलो, डू यू एग्री? बहुत लोग हाउस खरीदते हैं, हाउस बिल्डर के पास से, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, समझते हो सब लोग? बोलो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पेमेंट कैसे करना रहता है? कैन यू टेल मी, आपने एक 2 करोड़ का फ्लैट बुक किया इन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मुलुंड में समझो ओबेरॉय करके एक मस्त बिल्डर आया, उसने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू किया, आपने एक फ्लैट बुक करवाया, 2 करोड़ का फ्लैट बुक करवाया. कैन यू टेल मी, ये 2 करोड़ आप ऑन द स्पॉट पे करने वाले हो कि ये पैसा तुम थोड़ा थोड़ा करके पे करोगे? यू नो दैट पेमेंट इज कॉल्ड स्लैब वाइज पेमेंट. ऐसा सुना है क्या? स्लैब वाइज मतलब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होते जाएगा वैसे वैसे आप उसका पैसा देते जाओगे. कैन यू टेल मी, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक किया है और ओबेरॉय बिल्डर है और आपने उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में थोड़ा 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 करके पेमेंट किया है, देन व्हाट दैट ओबेरॉय बिल्डर इज फॉर यू? कोई बोलता है क्रेडिटर, कोई बोलता है नथिंग, कोई बोलता है डेटर, चौथा तो ऑप्शन ही नहीं है. देख वापस बोलता हूं, सोच समझ के आंसर दो. ये जो डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट है ना, ये अकाउंट्स सब्जेक्ट में इतनी बार यूज होएगा ना, इतनी बार यू कांट इमेजिन. मतलब तुम सीए फाइनल में जब भी आओगे ना 5 साल के बाद, तभी भी ये कॉन्सेप्ट उतना ही काम में आएगा. हु इज माई डेटर एंड हु इज माई क्रेडिटर. तो ये पॉइंट को है ना बहुत अच्छे से लॉजिकली दिमाग में बिठाओ, ये बहुत इजी है. पहले एक पॉइंट समझो, मैंने जो बोलने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना. 2 लोगों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है, सो दोनों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है. इज इट लाइक दैट आई विल गिव समथिंग टू यू एंड यू विल गिव मी नथिंग? ऐसा होएगा क्या? नहीं ना. ये मैंने जो बोला तुमको समझा मैं क्या बोला? दोनों साइड से लेना देना होना चाहिए. इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, यू विल ऑल्सो गिव मी समथिंग. इतना समझ में आता है? ओके. अब मैंने ओबेरॉय बिल्डर के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक किया,
प्लीज इमेजिन करो, जितना तुम प्रैक्टिकली सोचोगे उतना ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. दिस सब्जेक्ट विल बिकम चाइल्ड्स प्ले फॉर यू इफ यू थिंक प्रैक्टिकली. सोचो, आपने ओबेरॉय बिल्डर में एक 2 करोड़ का फ्लैट बुक किया. इनिशियली आपने उसको 10% पेमेंट दिया, 20 लाख रुपए का पेमेंट दिया. फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जाएगा, पहले 20 लाख दिया और 20 लाख दिया और 20 लाख दिया, ऐसे ऐसे करके अब देते जाओगे. 54 फ्लोर का बिल्डिंग है. जैसे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते जाएगा, आप ओबेरॉय बिल्डर को थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते जा रहे हो. माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Who is Oberoi Builders for you? Is he debtor or is he creditor or none of the two? Why debtor? Debtor is the correct answer. Why debtor? फ्लैट किधर दिया है अभी तक? मैं अगर उसको पैसा देगा तो उसको मेरे को फ्लैट देने का है. ये हम दोनों के बीच में तय हुआ है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि भाई मैं तेरे को थोड़ा थोड़ा करके 2 करोड़ रुपया देगा, सामने तू मेरे को फ्लैट देगा. ऐसा थोड़ी है कि मैंने उसको 20 लाख दिया तो उसने 20 लाख में मेरे को बाथरूम दिया, फिर मैंने दूसरा 20 लाख दिया, उसने मेरे को बालकनी निकाल के दे दिया, फिर और 20 लाख दिया, उसे बोला अभी तू पैसेज लेके जा. हेलो, ऐसा था क्या कि पूरा फ्लैट साथ में देगा? तो तुमने आज उसको जो 20 लाख दिया, 20 लाख दिया, 20 लाख दिया, सामने तुम्हें मिला क्या? मिला वादा. मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि 5 साल के बाद मैं तेरे को 2 BHK फ्लैट देगा. नहीं, कैसे मिला? और वो वादा ओरल वादा नहीं है. वो गीता ने सीता पे हाथ नहीं रखा था, बाकायदा बेटा एग्रीमेंट हुआ है. वो एग्रीमेंट का तूने गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी पे किया है, तूने वो एग्रीमेंट खुद के नाम पे रजिस्टर करवाया है. टुमारो इफ ही डजंट गिव यू फ्लैट, यू कैन ड्रैग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिकवर योर मनी विथ इंटरेस्ट. तो हु इज ओबेरॉय बिल्डर फॉर मी एवरीबॉडी? डेटार. ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है विच आई कैन गिव यू. चलो थोड़ा घर का एग्जाम्पल देता हूं, बिकॉज मुझे चाहिए तुम्हारा माइंड का चक्री चलने लग जाए. डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना सीखो. यहाँ से लेक्चर के बाद जाते हो ना, तो डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना सीखो. 2 लोगों के बीच या तो लेना देना ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा. ऑन द स्पॉट 2 लोगों के बीच लेना देना ऑन द स्पॉट. मैं किधर दुकान में गया, सामान खरीदा, पैसा दिया. होटल में गया, खाना खाया, पैसा दिया. इंडियन रेलवे में गया, टिकट खरीदा, ट्रेन में ट्रैवल किया. मेट्रो में गया, टिकट खरीदा, मेट्रो में ट्रैवल किया. उसी दिन मेरा लेना देना खत्म हो गया. नो रिलेशन ऑफ डेटार, नो रिलेशन ऑफ क्रेडिटार. मैं तो जानता भी नहीं हूं तेरे को. आपको क्या लगता है, आप होटल में जाके खाना खाते हो तो क्या होटल वाले को तुम्हारा एड्रेस मालूम है, उसको तुम्हारा नाम मालूम है, उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है? वाई ही डजंट टेक? क्यों आके वो तेरे को बोलता नहीं है तूने मेरे होटल में खाना खाया है, बता तेरा नाम क्या है? इमेजिन करो, इमेजिन करो तुम अचीजा होटल में खाना खाने गए, खाना खा के पैसा दिया, होटल के काउंटर पे तुमको एक फॉर्म दे दिया, ये फॉर्म भरो. तो मैं इसको बोलेगा भाई क्या है ये फॉर्म, काय को मेरे से फॉर्म भरवा रहा है? तो होटल वाला बोलता नहीं, इसमें लिखो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो कहाँ रहता है, तेरा डेट ऑफ बर्थ किधर है, किधर पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, लिख सब. और तुम मस्त गुड बॉय की तरह वो पूरा फॉर्म भर के उसको दे दोगे. डू यू एग्री विथ मी? फॉर्म भरोगे कि ना बोलोगे? बिल्कुल ना बोलोगे. साला वो फॉर्म भर दिया, ने घर पे फोन करके बोल दिया तुम किसके साथ होटल में आए थे, आई मीन गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में. ये फॉर्म भरने जरूरी क्यों नहीं है, मेरे को उतना बता दो. मतलब देयर इज नो रिलेशन ऑफ डेटार एंड क्रेडिटर. 2 लोगों के बीच में डेटार क्रेडिटर का रिश्ता रहेगा ना, तो नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब चाहिए. इमेजिन करो मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, तो मेरे को उसका डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ही ना, वरना 2 महीने के बाद इसको ढूंढूंगा किधर मैं?
तो अगर मैंने किसी को क्रेडिट में कुछ दिया ना तो मेरे को उसका पूरा डिटेल चाहिए, एवरीथिंग। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में लेना देना तभी का तभी खत्म हो गया, दोनों के बीच में लेना देना तभी का तभी खत्म हो गया, देन देयर इज नो रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। अब थोड़ा तुमको घर का एग्जांपल देता हूँ। घर पे ना सुबह 7 बजे दूध वाला आता है, पता नहीं तुमके घर में आता है कि नहीं, मेजोरिटी घर में तो आता है आज भी। तो दूध वाला क्या देके जाता है? डेली दूध देके जाता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन यू एंड द दूध वाला भैया? क्या रिलेशन है? हु इज दैट दूध वाला भैया फॉर यू? क्यों क्रेडिटर? सर्विसेज नहीं दे रहा है रे, दूध दे रहा है। क्या सर्विसेज दे रहा है? हाँ, गुड्स दे रहा है, एग्जैक्टली। मिल्क इज गुड्स, तो वो तुझे दूध दे रहा है, तो सामने क्या? एग्जैक्टली। दूध वाले को तो डेली थोड़ी देगा, ये ले 40 रुपए, ये ले 50 रुपए, ये ले 52 रुपया देते हो क्या डेली? कि महीने के एंड में पूरा हिसाब करते हो? महीने के एंड में हिसाब करते हो, तो तुम्हारे लिए वो दूध वाला कौन है? क्रेडिटर। व्हाई दैट दूध वाला इज क्रेडिटर फॉर यू? मनी इज पेएबल इन फ्यूचर, डू यू एग्री? फिर शाम को 8 बजे स्त्री वाला आता है, नहीं आता है? घर पे ही करते हैं, बहुत लोग घर पे भी करते हैं, बट वो स्त्री वाला भैया आता है। डेली तुमने उसको 4 कपड़ा दिया, 6 कपड़ा दिया, मस्त आयनिंग करके दूसरे दिन वापस देके जाता है। कैन यू टेल मी, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट स्त्री वाला भैया? हु इज ही फॉर यू? ऑब्वियसली क्रेडिटर। व्हाई इज ही योर क्रेडिटर? मनी इज पेएबल इन फ्यूचर। आपको याद है अपन एक दुकान भाड़े पे लिया था? हेलो, भाड़े पे लेना समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आप भाड़े पे लेते हो तो आपको लैंडलॉर्ड को क्या पे करना पड़ता है? रेंट तो बाद में यार, जब तू भाड़े पे लेगा और वो पार्टी के साथ जब एग्रीमेंट साइन करेगा, वो टाइम पे, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, आपको वो पार्टी को कुछ तो देना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है। 10 लाख रुपए का डिपॉजिट पे किया। कैन यू टेल मी, वो 10 लाख रुपया मेरा डूब गया और इज इट रिसीवेबल इन फ्यूचर? So if it is receivable in future, can you tell me that landlord is what for me? Debtor, obviously. Hello, are you there? समझ रहे? So तुम अगर ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना तो अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। दो लोगों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं और एक एग्जांपल दे देता हूं मेरी आंख के सामने। ऐसे मुंडी घुमा के देखो, पीछे बुक्स दिख रहे हैं सबको? तुमको भी बुक्स मिला रहेगा ना, टेक्स्ट बुक मिला ना? ये बुक्स हमने बाजार से परचेज किया है कि ये सेपरेटली प्रिंट करवाया है? प्रिंट करवाया है, परचेज नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक थोड़ी है। इसका एक एक पेज मैंने खुद लिखा हुआ है, उसको टाइप करवाया, प्रूफ रीडिंग करवाया, बाद में ये बुक्स को प्रिंट करवाया। तो हम लोग के बुक्स है ना, हमारा प्रिंटर पूना में है। दैट इज अ वेरी गुड प्रिंटर बिकॉज इस क्वालिटी ऑफ द बुक्स इज वेरी गुड। तो पूना वाले प्रिंटर से हम लोग बुक प्रिंट करवाते हैं। तो बुक प्रिंट करके इधर आ गया, फिर वो बिल भेजता है, फिर वो बिल भेजेगा, बाद में 10-15 दिन के बाद वी आर सपोज टू मेक द पेमेंट। सो कैन यू टेल मी दैट प्रिंटर जिसके पास से मैंने बुक्स प्रिंट करवाया, कैन यू टेल मी दैट प्रिंटर इज व्हाट फॉर मी? क्रेडिटर। व्हाई इज माय क्रेडिटर? बिकॉज डिड आई रिसीव्ड माय बुक्स और नो? यस, बट डिड आई पे? नो। देन मनी इज पेएबल इन फ्यूचर एंड देयरफॉर ऑपोजिट पर्सन इज माय क्रेडिटर। समझ रहे हो कि नहीं? पक्का? सो इज दिस डेटर क्रेडिटर गेटिंग इनटू योर ब्रेन प्रॉपरली एवरीबडी? सेम टाइम पे लेना देना हुआ ना, मैंने जो देना था वो मैंने तुझे दे दिया, तुझे जो देना था तूने मुझे दे दिया, अपना स्टोरी खत्म। मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है कि ये कौन है, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन है। इधर रोड पे जाओगे, मस्त इधर एक विट्ठल दाबेली वाला रहता है। दाबेली समझते हो कि नहीं? मेरा फेवरेट है, आई लाइक इट। कभी कभी लेक्चर नहीं रहता है तभी खाता हूँ। अभी दाबेली वाले के पास तुम गए, मस्त दाबेली खाया, दाबेली खा के उसको पैसा दे दिया, स्टोरी खत्म। इज ही योर डेटर? नो।
इज ही योर क्रेडिटर? डेफिनेटली नो, क्योंकि तुम्हारा लेना देना तबे का तबे, ऑन द स्पॉट, एट दैट मोमेंट, ऑन द वेरी सेम डे खत्म हो गया. बट बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होते हैं. ये ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट खत्म होने वाले कम होते हैं. क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन बिजनेस में ज्यादा होते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर बिटवीन द टू पीपल, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. अभी लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं एंड देन आई वुड लाइक टू कंक्लूड, बिकॉज ये एंडलेस स्टोरी है. आई कैन 1 hour गिव यू मोर एग्जांपल, बट आई थिंक यू आर नाउ कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन. एक आखिरी एग्जांपल देता हूं. लेट मी चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नो. रेलवे स्टेशन पे होर्डिंग रहता है, समझते हो? क्या के लिए रहता है? एडवर्टाइज के लिए, बराबर है. अब ये ना, मैंने रेलवे स्टेशन पे एक होर्डिंग बुक कर दिया 2 साल के लिए. ध्यान से सुनना. आई एम अ प्रोफेशनल एकेडमी. मेरे को एक अच्छा होर्डिंग मिला, वो मेरे को डिस्काउंट भी दे रहा था मस्त. मैंने उसको 2 साल का पैसा एडवांस दे दिया. ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि देख, 1 महीने का इमेजिन कर, 1 महीने का 1 लाख, लेकिन अगर मैं 2 साल का पैसा साथ में देता हूं, ही विल गिव मी हैवी डिस्काउंट. क्योंकि मैं 1 लाख के हिसाब से गिनेगा ना, तो 2 साल का 24 लाख होता है. महीने का 1 लाख, तो 2 साल मतलब 24 महीना, 24 महीने का होता है 24 लाख. और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एक्चुअल एग्जाम्पल है. ये होर्डिंग है ना रेलवे स्टेशन पे, एक बड़ा होर्डिंग मैंने रिसेंटली देखा हुआ था. एक्चुअली उसका रेंट 1 लाख है. गुज्जू एड्स करके एक है, भावेश भाई, ये उसका होर्डिंग है. तो उससे मैंने इंक्वायरी किया था, तो बोला महीने का 1 लाख, 12 महीने का 12 लाख होता है, 2 साल का 24 लाख होता है. लेकिन मैंने उसको पूछा कि भावेश भाई, अगर मैं पूरा पैसा ऑन द स्पॉट देता हूं, हर महीने 1-1 लाख नहीं, पूरा पैसा ऑन द स्पॉट देता हूं, गिव मी डिस्काउंट, ही विल गिव मी हैवी डिस्काउंट. तो 24 लाख का माल मेरे को 15 लाख में मिल जाएगा. अगर मैं उसको ऑन द स्पॉट 15 लाख पे कर दिया, तो ही विल बुक दैट होर्डिंग फॉर मी फॉर 2 years पीरियड. डिड यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल एवरीबडी? Okay, now my question is very simple. That Gujju adds, the भावेश भाई जिसको मैंने 15 लाख रुपए का तुरंत 2 साल का पैसा एक साथ एडवांस में दे दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी टू? व्हाट दैट गुज्जू एड्स बिकम्स फॉर मी? डेटर. व्हाट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर? सर्विसेज. समझो किसी वजह से वो सर्विस नहीं दे पाया, तो समझो बीएमसी ने आके वो होर्डिंग निकाल दिया, गवर्नमेंट का कोई लॉ चेंज हो गया, ये सब बीएमसी के अंडर में आता है. बीएमसी का लॉ चेंज हो गया और उसने वो बोर्ड पूरा निकाल दिया. तो बीएमसी ने अगर वो बोर्ड पूरा निकाल दिया, तो व्हाट विल हैपन टू माय मनी जो मैंने गुज्जू एड्स को पे किया है? रिफंडेबल ऑब्वियसली. मैं बोलेगा बीएमसी को मैनेज करना भाई तेरा प्रॉब्लम है. तूने मेरे को बोला कि आई एम गिविंग यू दिस होर्डिंग, दिस बिग होर्डिंग आउटसाइड रेलवे स्टेशन फॉर 2 years, तो मैंने तेरे को 15 लाख दिया. अपन ने बिल भी साइन किया, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया. तो या तो मुझे 2 साल के लिए तो वो होर्डिंग यूज करने दे, और अगर किसी वजह से तू मुझे वो होर्डिंग यूज करने नहीं दे सकता, तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. So he is my debtor, because either money's worth is receivable in the future or money is receivable in the future. So there is a relation of debtor and creditor between the two party. अगर मेरे लिए ये debtor है, तो इसके लिए मैं creditor रहेगा. Do you agree? मुझे इससे पैसा लेने का है, तो he is my debtor.
अभी तुम उसके एंगल से सोचो, मुझे अगर इससे पैसा लेने का है मतलब इसको मुझे पैसा देने का है। तो याद रखना, दो लोगों के बीच में जब डेटार क्रेडिटार का रिलेशन होता है तो उसमें से एक बंदा डेटार होता है और दूसरा क्रेडिटार होता है। मुझे अगर इससे पैसा लेने का है तो ही इज माई डेटार, इसको मुझे पैसा देने का है then I am his creditor. So there is always a relation of debtor and creditor where one of the person is debtor and other is creditor. पक्का? देखो मैं इतना डिटेल में इसके लिए जा रहा हूं कि जब भी मैं तुमको अकाउंटिंग सिखाएगा ना तो अकाउंटिंग के टाइम में तुम्हारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर कि either that person is my debtor or that person is my creditor or there is no relation of debtor and creditor. हेलो, गुड मॉर्निंग. बिल्कुल क्लियर है? पक्का? तो एक क्वेश्चन पूछूं, क्विज खेलते हैं. चलो एक क्वेश्चन पूछूं, सोच समझ के आंसर देना. अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट हो गया तो मैं समझ जाएगा कि यू हैव अंडरस्टूड डेटार एंड क्रेडिटार परफेक्टली. पूछू क्या? क्विज पूछू? ठीक है. मैं सुबह ना मॉर्निंग वॉक कर रहा था, एक स्ट्रेट रोड था. इमेजिन करो, मस्त एक स्ट्रेट रोड है, देवीदयाल रोड. मैं सुबह वॉक कर रहा था, सामने दूर से ऐसे इमेजिन करो, सुबह मैं वॉक कर रहा हूं, सामने दूर से एक आदमी आ रहा है. मैंने दूर से उसको पहचान लिया. उसने मेरे को देखा, वो भी आ रहा था स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में. मैं यहां से इस तरफ जा रहा था, वो वहां से आ रहा था. मेरे को देख के वो पतली गली में घुस गया अंदर. एक्चुअली उसको स्ट्रेट आना था, लेकिन उसने दूर से मेरे को पहचान लिया. मस्त दूर से पहचान लिया, फट करके पतली गली में घुस गया. ही मस्ट बी व्हाट फॉर मी? डेटार. एग्जैक्टली. मेरे को उससे पैसा लेने का है और उसके पास पैसा नहीं है. नहीं समझा? तो वो पतली गली में क्यों निकल गया? क्योंकि अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं उसको पकड़ेगा, साले मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है, और उसके पास पैसा है नहीं. उसने पैसा पूरा लुटा दिया मेरा. मेरे से लोन लिया था, है मेरा दोस्त, मेरे से 2 लाख रुपया लोन लिया. 2 लाख रुपया लोन लेके ड्रीम्स 11 पे लगा दिया पैसा और डूब गया पूरा पैसा. आजकल ये सब गैम्बलिंग वगैरह बहुत चलता है. पता नहीं आजकल हुआ क्या है गवर्नमेंट को. हाउ कैन गवर्नमेंट अलाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफिशियली? ड्रीम्स 11 पैसा बर्बाद करने का मशीन. अभी उल्टा हुआ तो मैं वॉक कर रहा था, सामने से कोई आया, मैंने उसको देखा, मैं पतली गली से निकल लिया. अभी वो कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर. और मेरे पास पैसा नहीं है तो पतली गली से निकल लिया. समझा ना? डेटार क्रेडिटर. बस चलो, तो ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट टाइम किया, विच आई डिस्कस्ड इन डिटेल. किसी को कोई क्वेरी है यहां तक तो पूछो प्लीज. जितना पूछोगे उतना तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे. दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता रहेगा. ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन लॉजिकल है कि नहीं है. आड़ा टेढ़ा अड़ंग तड़ंग जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है, पूछने का. जितना पूछोगे इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनेगा. और ये बहुत जरूरी है कि 11th में तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए. बहुत टाइम अपने को क्या डर लगता है कि यार इतना स्टूपिड जैसा क्वेश्चन है, कैसे पूछूं. ट्रस्ट मी, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो स्टूपिड नहीं है. किसको क्या लगेगा, सर क्या सोचेंगे, ऐसा सिली क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी के बच्चे हंसेंगे, ये सब चीजों में पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे. अगर सीखना है तो हर छोटी से छोटी चीज प्लीज मुझे पूछना. Never hesitate to ask the most stupid question, and you will always see I will take your question sincerely and I will reply to you sincerely so that your concepts will become very very strong. आगे बढ़ते हैं everybody. अभी टेक्स्ट बुक को बंद कर दो प्लीज. थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर अपन टेक्स्ट बुक में देखेंगे. टेक्स्ट बुक को प्लीज बंद कर दो.
स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पेयर से। तो अभी मेरे को ओरली एक बार रिवाइज करो वापस, विच वॉज पेयर नंबर 1। देख के नहीं है, रट्टा होना चाहिए, रट्टा। बिजनेस एंड प्रोपराइटर। सेकेंड, गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट। थर्ड, परचेसेस एंड सेल्स। फोर्थ, डेटर एंड क्रेडिटर। ये 4 जोड़ी अपना हो गया। अभी मैं 5वें से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज इनकम्स। टेक्स्ट बुक में देख के आंसर नहीं देना है, आपको सोच के आंसर देना है। और जब भी सोच रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए पता है? मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था। यू शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस। दिमाग में ऐसे सोचने का कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि अगर दिमाग में बिजनेस नहीं आया ना, तो तुम मेरे को पर्सनल लाइफ का, घर का एग्जाम्पल दोगे जो हमारे किसी काम का नहीं है। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना अकाउंट्स, ये बिजनेस से कनेक्टेड है। अभी मैं तुमको पूछेगा एक्सपेंसेस, और तुम लोग मेरे को बोलेगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इज वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपेंस और इज इट नॉट एक्सपेंस? इट इज एक्सपेंस। ये हमारे किसी काम का है? क्यों नहीं पता है? बिकॉज इट इज पर्सनल एक्सपेंस। 2 रहता है, एक पर्सनल एक्सपेंस जो घर का होता है, दूसरा बिजनेस एक्सपेंस। इनकम भी 2 टाइप का रहता है। विच 2 टाइप ऑफ इनकम्स कैन बी देयर? पर्सनल इनकम, बिजनेस इनकम। तुम फोकस किधर करोगे मुझे प्लीज बता दो। यू विल ऑलवेज फोकस ऑन बिजनेस। प्लीज याद रखना, ये सब्जेक्ट अच्छे से सीखने के लिए ये बिजनेस तुम्हारे दिमाग में बराबर बैठ जाना चाहिए कि तुम लोग अकाउंट्स के हर लेक्चर में एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। भले आपने बिजनेस किया नहीं रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बिजनेस समझना है हमें। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके बिजनेसमैन की तरह सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि आगे जाके या तो तुम खुद का बिजनेस करोगे या किसी के बिजनेस में जॉब करोगे। दोनों केस में बिजनेस तो समझना ही है। बिजनेस नहीं समझा तो रिक्शा चलाना पड़ेगा लाइफ में, समझते हो ना? दैट विल बी टेरिबल। किसी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे तो वो कंपनी भी बिजनेस कर रहा है, या खुद का बड़ा कंपनी बनाओगे तो तुम खुद भी बिजनेस कर रहे हो। तो आज से दिमाग में बिठा लो कि अकाउंट्स के हर लेक्चर में तुम एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे। तो मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को जब आंसर देते हो, प्लीज कीप इन माइंड यू विल थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, सो कोई बता सकता है ये वर्ड का मतलब क्या है? वैसे इनकम, इनकम मतलब पैसा आया कि पैसा गया? आया। तो चल अपन थोड़ा इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम वर्ड सुना है कि लाइफ में पहली बार सुन रहे हो? सुना है, ओके। तो इनकम्स का मतलब अपन बोलते हैं कि मनी कम्स इन बिजनेस, कि भाई हमारे बिजनेस में पैसा आया तो हम उसे इनकम बोलते हैं। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप प्लीज सोच समझ के बताना कि ये बिजनेस के लिए इनकम है या इनकम नहीं है। So I'll give you the example. बैंक लोन टेकन,
फर्स्ट एग्जाम्पल इज बैंक लोन टेकन 10 लाख रुपीस। मैंने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो पैसा आया कि पैसा नहीं आया? कितना पैसा आया? 10 लाख आया। इज इट माई इनकम? कुछ लोग ऐसे हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। नहीं है, क्यों नहीं है? 10 लाख आया, 10 लाख। करेक्ट बोला। मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा मैंने कमाया नहीं है। इनकम मतलब वो पैसा जो मैंने कमाया, जो मुझे वापस नहीं देना है। ये काहे का इनकम? अनलेस यू आर विजय मल्ल्या तो अलग बात है। नहीं समझा? विजय मल्ल्या है ना, वो लोन को भी इनकम समझता है। क्यों? वापस ही नहीं देता है। लेकिन अपन तो अच्छे बच्चे, अपने को अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचने का। सो माय क्वेश्चन इज, मैंने बैंक से लोन लिया, क्या ये मेरा इनकम है एवरीबडी? नो। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? दिस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ये वर्ड सुना है कभी? लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा, तो ये मेरा इनकम नहीं है। ओके, सेकंड एग्जांपल देता हूं। सेकंड एग्जांपल, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना प्लीज। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख में खरीदा था। कितने में खरीदा था एवरीबडी? 50 लाख में। वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दिया। बेच दिया। कितने में बेचा मालूम है? 70 लाख में बेचा। सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या इस ट्रांजैक्शन में आपका कुछ इनकम है कि नहीं है? कितना पैसा मिला? कितना पैसा मिला? 70 लाख। क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेचा। 2 साल पहले मैंने 50 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा था। 2 साल के बाद प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया। प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया तो मैंने उसको 70 लाख में बेच दिया। हाउ मच मनी डिड आई रिसीव? इज 70 लाख। Is my income also 70 lakh? How much is it? Only 20 lakh. Do you agree? Okay. थर्ड एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में 25 लाख रुपया रखा था। मेरे पास सरप्लस पैसा था, तो मैंने क्या किया? वो सरप्लस पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? किसी अच्छी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख दिया। फिर मुझे इस फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला। आई रिसीव्ड व्हाट एवरीबडी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मुझे 2 लाख रुपया मिला। क्यों 2 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला? बिकॉज the rate of interest was 8% per annum. पर annum मतलब साल का 8%। 25 लाख का मैंने 8% कर दिया, तो मुझे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट समझते हो ना? क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को? और कोई वर्ड है इंटरेस्ट का? इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूं, इन एनी अदर योर लोकल लैंग्वेज। ब्याज सुना है ना सबने? ओके। So 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। So my question again is very very simple, क्या ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है कि नहीं है? Do you agree? ये क्यों इनकम है 2 लाख?
वापस नहीं देने का है, मैंने कमाया है तो ये मेरा इनकम है, क्योंकि मुझे ये वापस नहीं देना है। डू यू एग्री? ओके, हम लोगों ने प्रोफेशनल एकेडमी ने आपसे फीस लिया, तो कैन यू टेल मी दैट फीस इज व्हाट फॉर अस एवरीबडी? इनकम। डू यू एग्री? सामने हमें आपको क्या देना पड़ेगा? सर्विस। Who will give the service to you, everybody? Various teachers. Yes or no? तो मैं टीचर को भी पैसा देना पड़ेगा ना, कोई टीचर आके थोड़ी फ्री में पढ़ाएगा। अभी कल प्रीतेश सर ने आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया, तो मुझे प्रीतेश सर को भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो जब मैं प्रीतेश सर को उनका टीचिंग का पैसा देगा, कैन यू टेल मी व्हाट दैट इज फॉर मी? एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंस। सो अंडरस्टैंड देयर आर टू very important word. One is called as incomes, other is called as expenses. और आपको पता है किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा इनकम क्या होता है? ऐसे बिजनेस में बहुत सारी इनकम्स होती है, but you know there is a biggest income and that is from sale of goods or services. ये किसी भी बिजनेस के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऐसा नहीं है कि ये एक ही इनकम है मेरा, लेकिन अगर मेरा 1 करोड़ का इनकम रहेगा ना, 1 करोड़ का, तो 90 लाख का ये रहेगा, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। वैसे ही आपको पता है विच इज द बिगेस्ट expense for any business is purchase of goods or production of goods. या तो आप गुड्स को परचेज करोगे या तो आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर एनी बिजनेस। अब कोई भी दुकान इमेजिन करो, टेक एनी रिटेल शॉप, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिटेल शॉप जहां आपने आज तक विजिट किया रहेगा, और इमेजिन करो कि उस रिटेल शॉप के लिए क्या सबसे बड़ा इनकम है। देन आंसर इज सेल ऑफ गुड्स। थोड़ी देर के लिए अपन सर्विस को साइड पे रखते हैं, वी फोकस ऑन द गुड्स। सो किसी भी बिजनेसमैन के लिए विच इज द बिगेस्ट and largest source of income, then answer is sale of goods. Likewise, which is biggest or largest expense for any business? The answer is purchase of goods. Do you agree with me or no? Okay, अब मुझे प्लीज सोच समझ के बताओ, what are the other incomes? अभी मुझे इनकम के बारे में थोड़ा बात करना है। सेल ऑफ गुड्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, आई एग्री विद दैट, बट उसके अलावा अ बिजनेसमैन कैन गेट मैनी अदर इनकम्स। कैन यू इमेजिन विच आर द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर एनी बिजनेस? एसेट सेल किया, उसके ऊपर प्रॉफिट मिला। जैसे अभी अभी एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद है अपन ने प्रॉपर्टी क्या भाव में परचेज किया था? 50 लाख। वही प्रॉपर्टी 2 साल के बाद क्या भाव में बेच दिया? 70 लाख। तो ये जो बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉपर्टी इज अवर फिक्स्ड एसेट, मे बी हमने उसको बेचा, या आप उसको बोल सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी बेच सकते हो। आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया, आपने उसको बेच दिया और आपको उसमें से प्रॉफिट मिला। और भी बहुत है। कैन यू इमेजिन किसी बैंक को
किसी बैंक को आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख दिया रहेगा, यू वुड हैव गिवन द मनी एज अ फिक्स डिपॉजिट टू एनी बैंक, तो उसके ऊपर भी आपको इनकम मिलेगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनकम यू विल रिसीव ऑन द बैंक फिक्स डिपॉजिट? इंटरेस्ट मिलेगा. सो यू विल रिसीव इंटरेस्ट एवरीबडी, that is called as a interest received. बोलो उसके अलावा भी there are quite a few other incomes that any business can receive. Can you please tell me what are those incomes? शेयर्स में इन्वेस्ट किया, परफेक्ट एग्जाम्पल है. अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द इनकम दैट आई कैन रिसीव व्हेन आई इन्वेस्ट माय मनी इनटू शेयर्स ऑफ सम कंपनी? डिविडेंड मिलेगा. सो डिविडेंड रिसीव्ड is the other income that you have. चलो anybody, any other example? अप्रिसिएशन मिलेगा, ये मैंने लिख दिया, ये देखिए रहा. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट एप्रिसिएशन. उसके अलावा भी कुछ है? दैट्स ऑल. ये जो इनकम है ना, बहुत काम की चीज है. कल तुम्हें भी तो इनकम चाहिए रहेगा, 5 साल के बाद पैसा कमाना है, तो तुमको क्या चाहिए? इनकम चाहिए ना. तो क्या एक ही इनकम रहेगा तुम्हारा? खाली सैलरी? किसी कंपनी में जॉब करते हो तो जॉब के ऊपर सैलरी मिला, बस एक ही इनकम चाहिए कि यू नीड मोर देन वन इनकम? तो और क्या क्या इनकम हो सकता है, सोचो. इट इज सेम फॉर बिजनेस, इट इज सेम फॉर इंडिविजुअल. और भी कुछ इनकम हो सकता है. यस, किसी को मैंने लोन दिया रहेगा, मेरे पास पैसा रहेगा, मैंने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया रहेगा. बोलो अगर किसी को मैंने लोन दिया रहेगा तो उस लोन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? एवरीबडी, इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये देख, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. चाहे आप पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे ही किसी थर्ड पार्टी को अगर आपने लोन दिया रहेगा उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन और भी तो इनकम हो सकता है. और एक मेजर इनकम है जो आप भूल रहे हो. और ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, कहां पे मेरा पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, और वो पैसा मैं कहां पे इन्वेस्ट करता हूं जिसकी वजह से मुझे कुछ इनकम मिलेगा? प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली. अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, सो कैन यू टेल मी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या इनकम मिलेगा? रेंट मिलेगा. तो यहाँ पे आएगा रेंट रिसीव्ड एवरीबडी एक्सेट्रा. सो दीज आर few examples of various incomes that business can receive. Hello everybody, you are there? Okay. Expenses का example दो. अब वापस बिजनेस के बारे में सोचना. घर में वो सब्जी का मत सोचना, घर में जो शांताबाई काम करती है उसका सैलरी नहीं सोचना, अपने को घर का नहीं सोचना है, अपने को बिजनेस के बारे में सोचना है. देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मतलब खर्चा. व्हाट डू यू मीन बाय खर्चा? ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं? समझो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, ये मेरा एक्सपेंस है. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. वापस करता हूं, कोशिश करता हूं. मैंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, क्या ये मेरा एक्सपेंस है? एक्सपेंस है कि नहीं है? उतना बताओ. क्यों नहीं है एक्सपेंस? अरे ये प्रॉपर्टी कल फ्यूचर में बेचूंगा तो मुझे पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर काहे का एक्सपेंस? व्हाट इज एक्सपेंस, मुझे बताओ. खर्चे का मतलब क्या है? एग्जैक्टली. शॉर्ट टर्म में तुम्हें सर्विस मिल गया एंड दैट इज द एंड ऑफ इट. अब प्लीज ध्यान से मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, बिकॉज ये एक्सपेंस वर्ड है ना, ये भी बराबर दिमाग में बैठना चाहिए. हर बार जब पैसा जाता है तो वो एक्सपेंस नहीं होता, हर बार जब पैसा मिलता है तो वो इनकम नहीं होता. यू हैव टू थिंक एंड आंसर.
सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक घरेलू एग्जाम्पल पहले देता हूं। तुम एक मूवी देखने गए, जाते हो कि नहीं जाते हो? मूवी देखने गए, कितना खर्चा होता है? 2 जन मूवी देखने गए, 500 से तो ज्यादा ही होता है साले, तो किधर जाता है मूवी देखने? क्योंकि मूवी में अपन जाते हैं 200 रुपए का टिकट पकड़ते हैं, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। 2 जन गए, 400 रुपए तो टिकट का चला गया। फिर बस और कुछ खर्चा नहीं होता है। गुड बॉय की तरह बैठते हो, मूवी देखते हो, वापस आते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ट्रैवलिंग पे खर्चा होएगा डेफिनेटली, ऑटो से ट्रैवल किया या जैसे भी ट्रैवल किया तो ट्रैवलिंग पे खर्चा होएगा डेफिनेटली। 50 रुपया ट्रैवलिंग का चला गया। चलो फिर खाना, क्या खाते हो? पॉपकॉर्न खाते हो। पॉपकॉर्न तो बहुत सस्ता रहता है, नहीं नहीं 20 रुपए का पॉपकॉर्न जो तुमको रोड पे मिलता है 20 रुपए का, वो तुमको 40 रुपए में देते हैं। यस और नो? हाँ बोलते हो यार। ये 40 रुपए का पॉपकॉर्न कहाँ मिलता है? मेरे को लेके जा यार प्लीज। कौन सा थिएटर है मेरे को प्लीज बता। सीरियसली मतलब पॉपकॉर्न क्या भाव का मिलता है यार? 400 रुपए का साला, 40 रुपए का पॉपकॉर्न 400 के भाव में टपका देते अपने हाथ में, अपन लेते भी है। पानी का बोतल 50 रुपया, 10 रुपए वाला 2 समोसा 100 रुपया, बराबर लूटते हैं। इसके लिए तो आजकल इनका थिएटर चलता नहीं है। सब लोग क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स, ओटीटी पे देखते हैं। क्यों? थिएटर में देखो, बहुत सारे थिएटर आजकल लॉस में चल रहे हैं, लेकिन गधे लोग को समझ फिर भी नहीं आता, भाव कम नहीं करेंगे। 400 रुपए का कोई पॉपकॉर्न होता है, बेशरम लोग। जब पॉपकॉर्न 100 रुपया करेंगे ना, तो पब्लिक धीरे धीरे थिएटर में जाना वापस स्टार्ट करेगा। आज तो अच्छा मूवी आता है तो क्या करते लोग? 2 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ते के बाद किसी न किसी ओटीटी चैनल पे आ जाएगा। फिर मस्त घुमा फिरा के 5 बार देख सकते हैं अपन। जो नहीं देखना है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो 2 बार देखना है वो 2 बार देखेंगे। तब ओटीटी चैनल आने की वजह से थिएटर वाले का बिजनेस वैसे भी खतरे में आ गया, लेकिन ये गधे लोग फिर भी सुधरते नहीं है। तो इमेजिन करो, तुम 2 जन थिएटर में गए, 1000 रुपए का तो खर्चा होएगा कि नहीं? क्या बोलते हो? व्हाट इज दैट 1000 रुपीज? मैंने मेरे हाथ से 1000 रुपया दिया। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं वो। कितना रुपया दिया? कैश दिया। ये है कैश में। मैं इसको, ये थिएटर है समझो, मैंने थिएटर को 1000 लेना दिया। फिर देते टाइम पे मैं वो 1000 रुपए को 2 मिनट ऐसे देखने लग गया, क्योंकि मुझे पता है ये जो आज गया ये कसम से वापस नहीं आएगा। ये आखिरी बार मैं इस 1000 रुपए को देख रहा हूं, तो देख लूंगा, सेल्फी निकाल लूंगा, बाद में 1000 रुपया इसको दे दूंगा। तो ये 1000 रुपया मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। वाई डू यू कॉल इट एज एक्सपेंस? यू नो, क्योंकि आपने 1000 रुपया दिया, सामने आपको क्या मिला? सर्विसेज मिला। व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट सर्विसेज दैट यू गॉट? 3 hours, 4 hours, 5 hours, that's all, and that is the end of। मतलब मैंने क्या किया? 1000 रुपया बीड़ी पी के फूंक डाला। ये लैंग्वेज समझते हो? नहीं समझते हो? ओके। दूसरा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में जब तुम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो, इमेजिन करो पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है? कौन चिल्लाता है और क्यों चिल्लाता है पता है? क्या? मम्मी चिल्लाती है। वो मम्मी चिल्लाती रहती है, मम्मी लोग। हाँ, लाइट और पंखा बंद नहीं किया। जब पीछे से आवाज आती है, कितनी बार तेरे को बोलूं, एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा, तेरे बाप की दिवाली है इधर, लाइट बंद कर, पंखा बंद कर, एसी बंद कर। क्यों चिल्लाते? कभी सोचा? Have they gone mad? No. Because electricity is a expense. क्योंकि वो पैसा जो तुम इलेक्ट्रिक का बिल भरते हो,
क्या वो पैसा कभी वापस आने वाला है? नहीं. सो पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्सपेंस. जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं खर्चा जितना हो सके उतना ज्यादा करो. सुना है कभी? अच्छा नहीं बोलते तो क्या बोलते? कम करो. क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? बिकॉज जो पैसा गया वो वापस नहीं आएगा. अब समझो आप बड़े हो गए, पैसा कमाने लग गए, आपने गोल्ड खरीदा, 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा. जैसे आपने 2 लाख पे किया, ये समझो ये ज्वेलर है, तेरी ज्वेलर की दुकान है, भारती ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स. मैंने तेरे से गोल्ड खरीदा और मैं तुझे 2 लाख दे रहा हूं. ये मेरे हाथ में 2 लाख रुपया है. अब मैं ये 2 लाख को किस तरीके से देख रहा हूं? I mean, is this money, is it paining me? So 1000 रुपया थिएटर में तुमको पेन किया और ये 1 लाख रुपया पेन नहीं किया. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख जा रहा है, ये जा नहीं रहा है, ये वापस आएगा. आ सकता है नहीं, 100% आएगा. अरे बेटा 1 लाख का 90,000 आएगा, गोल्ड का भाव बढ़ गया तो 1,10,000 आएगा. दैट इज ओके. बट क्या है, तेरा पूरा पैसा डूब गया कि ये वापस आएगा? बिल्कुल वापस आएगा. तो क्या ये एक्सपेंस है? हेलो, क्या ये एक्सपेंस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड. मैंने एक 2 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज किया. मेरी मम्मी वापस चिल्ला रही है मेरे पे, क्या किया तूने? ये 2 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज किया, तेरे दिमाग ठिकाने नहीं है. विल शी टेल लाइक दैट और विल शी बी हैप्पी? फिर मैंने और 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, अभी 5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, तो she'll be more happy. Why they are not telling you? ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉपर्टी में परचेज के तो वो एक्सपेंस थोड़ी है. हाँ, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अपन आगे जाके सीखेंगे, बट वो एक्सपेंस थोड़ी है. सो व्हाट इज एक्सपेंस? इज दिस क्लियर इन योर माइंड? एक्सपेंस का मतलब मैंने पैसा दिया, सामने मुझे जो भी मिला वो शॉर्ट टर्म के लिए है. होटल में जाके खाना खाया, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? सर्विस मिला. मतलब क्या किया उसने? बूट पॉलिश किया तुम्हारा? तो क्या किया? अबे खाना दिया यार, क्या सर्विस यार? होटल में मैं थोड़ी बाल कटवाने गया था, सर्विस की बात किधर आई इधर? पैसा दिया ना क्या दिया उसने आपको? पाव भाजी दिया, पिज्जा दिया, फालूदा दिया, आइसक्रीम दिया, बराबर है, और तुमने उसको पैसा दे दिया. सो व्हाट इज दैट मनी? वो जो तुमने होटल में पे किया, एक्सपेंस है कि एसेट है? देख, 2 वर्ड अलग है. एक है एक्सपेंस, दूसरा है एसेट. ये एक्सपेंस है कि एसेट है? वाई एक्सपेंस? मुझे मतलब आप ये बोल रहे हो कि मेरे को उसके बदले में कुछ मिला ही नहीं, कि मिला? मिला. क्या मिला? खाना. उस खाने की लाइफ क्या है? शॉर्ट टर्म. क्या वो खाना दोबारा बेच के पैसा कमा सकता हूं? नहीं, तो एक्सपेंस हो गया. लेकिन गोल्ड बेच के पैसा कमा सकता हूं वापस? यस. प्रॉपर्टी वापस बेच सकता हूं? यस. शेयर्स वापस बेच सकता हूं? यस. तो वो एक्सपेंस नहीं है. एक्सपेंस का मतलब खर्चा, मतलब जो पैसा गया वो गया, अब वो दोबारा वापस नहीं मिलेगा. हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे के बदले में कुछ नहीं मिला, मिला, बट वो शॉर्ट टर्म है. आपने होटल में खाना खाया, शॉर्ट टर्म. आप किसी थिएटर में गए, मस्त 4 घंटा मूवी एंजॉय किया, शॉर्ट टर्म. किसी सलून के पास गए, बाल कटवाया, शॉर्ट टर्म. तो आपने पैसा दिया, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा गटर में डाल दिया. नो, आपने पैसा दिया, उसके बदले में या तो आपको कुछ मिला, सर्विस मिला, या कुछ तो भी प्रोडक्ट मिला, लेकिन उसका लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म है. और अगर उसका लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म है तो उसको आप एक्सपेंस बोलते हो. इज दिस वर्ड एक्सपेंस वेरी क्लियर एवरीबडी?
यस और नो? ओके, तो अब मुझे एग्जांपल दो एक्सपेंस के। तो बहुत सारे एग्जांपल है। विच इज द मेजर एक्सपेंस बाय द वे किसी बिजनेस के लिए? विच इज द मेजर एक्सपेंस, कैन यू टेल मी? परचेस ऑफ गुड्स, ये तो हमारा हो गया। अब इसके अलावा इन बिजनेस देर आर सो मेनी, मतलब मैं तुमको लिटरली लिस्ट बना के 50 एक्सपेंस तो दे सकता हूं। सो यू कैन टेल मी एक एक करके। बिल्स पेएबल इज नॉट एक्सपेंस माय डियर। एक मिनट, आपने अकाउंट्स 9th-10th में पढ़ा है तो आपको बिल्स पेएबल वर्ड मालूम है, ये लोग को नहीं मालूम है। बट आई एम करेक्टिंग यू माय डियर, बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट एक्सपेंस। बाकी लोग नहीं सुनो ये सब, वी विल डू इट लेटर। बट योर आंसर इज टोटली रॉन्ग बिकॉज बिल्स पेएबल, तो ध्यान से इसका नाम देख, बिल payable. What do you mean by payable? Money is payable in future. उसको accounting language में liability बोलते हैं. That is definitely not expense. बोलो expense का यार बहुत example है. सैलरी। चल मैं एक एक करके लिख के जाता हूँ। मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं मेरे को उनको सैलरी देना पड़ेगा। चलो सोचो यार, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, मैं थोड़ी मोमबत्ती जला के दुकान में रखेगा। एसी रहेगा, मेरा सीसीटीवी कैमरा रहेगा, लाइट्स रहेगा, फैन रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इज डेफिनेटली माय एक्सपेंस। फर्नीचर खरीदा तो वो एक्सपेंस है क्या? वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है बेटा, बिकॉज वो फर्नीचर 5 साल 10 साल में यूज करेगा, थोड़ी वो फर्नीचर 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। फर्नीचर है फर्नीचर, स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी रहेगा तो 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। टिश्यू पेपर रहेगा तो खत्म हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर रहेगा तो खत्म हो जाएगा। पानी पीने का बोतल रहेगा तो खत्म हो जाएगा। कटिंग चाय रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारा एक्सपेंस है। लेकिन फर्नीचर को तो 5 साल यूज करेगी, एसी को 5 साल यूज करेगी, तो उसको एक्सपेंस नहीं बोलते। दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड एसेट। अरे वो बिल्स पेबल क्या है तुझे पहले पता है कि नहीं? बोल। नहीं पूछ बेटा, बिकॉज वो बिल्स पेबल है ना, तुम्हारा 12th का चैप्टर है। वो तुमको 11th के सिलेबस में भी नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस चैप्टर में ये बिल मतलब वो दुकान में सामान खरीदते हैं वो वाला बिल नहीं है, या तेरा इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है। इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसको या तो बिल्स रिसीवेबल करके बुलाते हैं या बिल्स पेएबल करके। और ये चैप्टर तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ही नहीं है। सो आप उसको इलेक्ट्रिक बिल के साथ प्लीज मिक्स नहीं करो। इट इज टोटली सेपरेट। एट द अप्रोप्रिएट टाइम आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल। बोलो यार, एक्सपेंस तो बहुत सारा है यार। रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने किसी से वो दुकान भाड़े पे लिया रहेगा तो हर महीना मेरे को उसका भाड़ा देना पड़ेगा। सो रेंट इज डेफिनेटली माय एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। ऑब्वियसली मुझे मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। इसको आप मार्केटिंग भी बोल सकते हो। कुछ लोग मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मोर और लेस इट इज एग्जैक्टली द सेम। ट्रैवलिंग, वेरी गुड। बिजनेस के लिए मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसके लिए मेरे को ट्रैवलिंग का रिक्शा भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, ट्रेन रहेगा, मेरा खुद का गाड़ी रहेगा तो उसका फ्यूल वगैरह रहेगा, तो ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा। दैट इज डेफिनेटली माय एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, एग्जांपल दे। बोल। चाय पानी का खर्चा, और क्या? स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, वेरी गुड। सन्ड्री एक्सपेंस में छोटे छोटे खर्चे आ गए। फिर आप स्टेशनरी खरीदते हो ऑफिस के लिए, तो स्टेशनरी पे आपका एक्सपेंस है। लाइकवाइज एनीबडी? वाटर, डेफिनेटली। वो तेरा वाटर है ना बेटा, ये सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। बट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफिस में विजिटर्स आते हैं, आप 5-5 रुपए का पानी का बोतल मंगवाते हो तो वो भी आपका एक्सपेंस है। लोन पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है। लोन है ना, लोन वो लायबिलिटी है।
क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि तूने बैंक से अगर 10 लाख का लोन लिया रहेगा तो वो तुझे फ्यूचर में वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन हर महीना तेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्ट तू लोन के ऊपर पे करेगा, वो इंटरेस्ट तू जो पे करेगा वो तेरे लिए डेफिनेटली एक्सपेंस है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हो ना, मतलब यू आर देयर ना, समझ रहे ना? या बाउंसर जाता रहेगा तो बोलना मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूं। क्या हंसते हो तुम लोग? नेक्स्ट वीक से ना तुम लोग का 3 आवर्स हो जाएगा, तो उसमें तुमको ब्रेक मिलेगा। नेक्स्ट वीक से तुम्हारा टाइम टेबल कैसे रहेगा मालूम है? 1.5 आवर का एक लेक्चर रहेगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर 1.5 आवर का दूसरा लेक्चर रहेगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू विल हैव 2 लेक्चर ऑफ 1.5 आवर डेली। डेली यू विल हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स और 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। समझ रहे हैं ना? यू आर देयर विथ मी ना एवरीबडी? यस और नो? या ओके। बोलो इनकम एक्सपेंस में किसी को कोई क्वेरी और मोर और लेस दैट इज क्लियर टू यू? हेलो एवरीबडी, क्लियर है कि नहीं है? मैंने किसी को लोन दिया, चलो पूछता हूं, आई हैव गिवन लोन टू समबडी, कोई पहचान वाला है? उसको मैंने लोन दिया, लोन गिवन 5 lakh rupees. I am giving you the choice. Is it my expense or is it my asset? लोन गिवन मतलब क्या? पैसा गया, मनी गॉन। मैंने 5 लाख रुपया किसी को लोन दिया, तो जब 5 लाख रुपया किसी को लोन दिया तो आपको क्या लग रहा है? मैं जब लोन दे रहा हूं तो मेरे दिल में दर्द की फीलिंग है कि खुशी की फीलिंग है? क्यों? खुशी क्या है? इंटरेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली। तो लोन दिया तो उसमें कोई मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन इमेजिन करो मैं कार में जा रहा था, कहीं पे सिग्नल तोड़ दिया, आरटीओ वाले ने पकड़ा, 2000 रुपया मैंने उसको फाइन दिया। बहुत समझाया साले को लेकिन सुना नहीं, उसको बहुत समझाया, क्यों इंडिया का नाम खराब करते हो, यू शुड टेक ब्राइब, प्लीज 500 रुपया ले ले, मेरे को छोड़ दे, ऐसा क्या कर रहा है, सब लोग लेते हैं। लेकिन नहीं सुना साला, देशभक्त निकला, पूरा 2000 मेरे को उसको देना पड़ा। जब मैं उसको 2000 दे रहा था, व्हाट वेर माय इनर सेंटिमेंट्स? खुशी थी कि पेन था? क्यों पेन था मालूम? क्यों एक्सपेंस? क्योंकि जब वो पैसा गया तो मुझे मालूम है ये वापस नहीं आएगा। एग्जैक्टली। डू यू एग्री? हेलो, पक्का समझा? ओके। सो किसी को लोन दिया, डेफिनेटली मेरा एक्सपेंस नहीं है। क्यों मेरा एक्सपेंस नहीं है? व्हाई डू आई कॉल इट एज एसेट एवरीबडी? बिकॉज मनी or money's worth is receivable in future. Okay, now I take the next definition. एक वर्ड है एसेट और दूसरा वर्ड है लायबिलिटी। ये तो सुना हुआ रहेगा कि नहीं सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? एसेट मतलब मनी और मनीज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। और लायबिलिटी का मतलब क्या है एवरीबॉडी? मनी और मनीज वर्थ इज पेबल इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है अपन उसको एसेट बोलते हैं, फ्यूचर में पैसा पेएबल है अपन उसको लायबिलिटी बोलते हैं। कैन यू टेल मी, किसी भी इंसान के पास क्या ज्यादा होना चाहिए? एसेट। वी कॉल मुकेश अंबानी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। व्हाई? क्योंकि उसके पास नीता है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। तो उसका क्या दर्द है तुमको आइडिया भी नहीं है या? सो it is not because he has Nita Ambani. Why he is considered the richest person? अपन बोलते हैं ना बहुत मजबूत पार्टी है यार ये,
अपने सामने कोई मर्सिडीज में जाएगा, अपन बोलेंगे यार एकदम सॉलिड पार्टी है यार, इसकी बेटी अगर मेरे से पट जाए मेरा तो जिंदगी बन जाए। देख बेटा, 16 से लेके 19 तक है ना, ये सब ख्याल आते हैं। ऑनेस्टली मुझे भी आता था। फिर हम मेच्योर हो जाते हैं, देन अवर क्राइटेरिया चेंजेस ऑफ सिलेक्टिंग द लाइफ पार्टनर। मैं जब 16-17 साल का था, आई वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। जैसे मन में सोचता था कोई मजबूत पार्टी की लड़की को पटा लूं, घर जमाई बन जाऊं, जिंदगी में पैसे का टेंशन ही नहीं। फिर बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि नो नो, that is not the right criteria of choosing a life partner. There are different criteria altogether. So, when you talk about Mukesh Ambani, a very rich person, ये बहुत मजबूत पार्टी है जब हम बोलते हैं। What this is called in the accounting language मालूम है? What is more with that person? Asset. तो उसके पास एसेट्स का एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से सुनना प्लीज। दिस इज वेरी वाइटल, क्योंकि कल जब तुम लोग भी पैसा कमाने लग जाओगे ना, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव मोर एंड मोर ऑफ द एसेट, वेरी लेस लायबिलिटी। ये हर एक बिजनेस को भी करना चाहिए, हर एक इंसान को भी करना चाहिए। आपको मालूम है रियल लाइफ में कुछ लोगों की लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से। यू नो व्हाट सच पीपल आर कॉल्ड एज? अबे उसका कोई क्लास ही नहीं है यार बावले। मिडिल क्लास कौन है मैं तेरे को बताऊं, देख मैं तुमको है ना, आई एक्सप्लेन और तुम उसको रियल लाइफ से मस्त रिलेट कर पाओगे। देख मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। वन इज मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एसेट्स है 25 लाख का, ध्यान से सुनना, और लायबिलिटीज है 5 लाख का। एसेट्स आर 25 लाख। व्हाट इज दैट 25 लाख एवरीबडी? मनी, और मनीज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। What is it? 5 lakh liability का क्या मतलब हुआ? Payable in future. Tell me, this Mr. A is in which class in the society? अबे 25 लाख का एसेट है, 2 लाख 5 लाख का लायबिलिटी है। He is into extremely lower class. ऐसे लोग तुम्हें बदलापुर, अंबरनाथ उधर मिलेंगे। मुलुंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा। मुलुंड में घर लेना रहेगा तो 2 करोड़ का रहता है घर, और इसके पास तो एसेट ही है 25 लाख। 25 लाख में थोड़ी मुलुंड में घर आता है। श्रीनगर में झोपड़ा नहीं आता है साला 25 लाख का। मजाक नहीं कर रहा हूं, झोपड़ा भी 40-50 लाख के नीचे नहीं मिलता है, क्योंकि वो झोपड़ा है ना, बाद में तुमसे वो बिल्डर ही ले लेता है। उसको जमीन चाहिए रहता है ना रीडेवलपमेंट के लिए, तो वो झोपड़े के सामने तुमको फ्लैट बना के देता है। स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको। तो ये जो 25 लाख का किसी के पास एसेट है और 5 लाख का लायबिलिटी है, मतलब तुम्हारे हिसाब से दिस पर्सन इज इन विच कैटेगरी इन द सोसाइटी? लोअर क्लास, मिडल भी नहीं, लोअर क्लास। इसको अब लोअर क्लास बोलते हो। अच्छा ठीक है, अदर वे राउंड पूछता हूं, योर पेरेंट्स आर इन विच क्लास? सोचो, घर जाके पूछ लेने का, पापा आई वॉन्ट टू नो व्हाट ऑल एसेट्स यू हैव, आई वुड लाइक टू नो हाउ सिक्योर इज माई फ्यूचर। मुझे जानना है मैं किसके घर में पैदा हुआ हूं। मम्मी को थोड़ा डिफेंस के लिए बीच में रखने का, ऐसे डायरेक्ट पापा के सामने एक्सपोजर नहीं लेने का। कोई जोर से कान के नीचे पड़ सकती है, और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेने का। मैं तुम्हारा दोस्त हूं साला, मेरे को मरवाना नहीं, वरना तुम्हारे मम्मी पापा इधर आ जाएंगे। मतलब कुछ करके डिप्लोमेटिकली फाइंड करने का कि तुम्हारा फ्यूचर कितना सिक्योर है। सो व्हाट डू यू थिंक?
Your parents must be having 25 lakh rupees का asset. You really think so? Definitely no. उससे तो कहीं ज्यादा तुम्हारी मम्मी के पास ज्वेलरी रहेगा जो छुपा के रखती रहेगी, प्लस घर रहेगा, घर में बाकी सब सामान रहेगा. तो ये जो है ना, ये बहुत लोअर क्लास बोलते हैं अपन इसको. ऐसे लोग मुलुंड में नहीं रहते. किधर रहते हैं? किधर रहते बोलो? आगे बदलापुर वैसी जगह पे, क्योंकि उधर घर बहुत सस्ते में मिलता है. 15-20 लाख में 1 BHK फ्लैट मिल जाता है. इधर मुलुंड में 1 BHK में तो बाथरूम भी नहीं मिलता है. फ्लैट किधर से मिलेगा? समझ रहे हो ना? अभी मिस्टर बी के पास आते हैं. 2 करोड़ का एसेट है, 30 लाख का लायबिलिटी है. बोलो अभी इसको क्या बुलाओगे? मिडिल क्लास. आई एग्री विथ यू. मिस्टर सी, आगे बढ़ते हैं. 5 करोड़ का एसेट, 50 लाख का लायबिलिटी, अपर मिडिल क्लास. आई एग्री विथ यू. मुलुंड में बहुत सारे ये अपर मिडिल क्लास में रहते हैं, जो लोग के पास 2-3 करोड़ का तो फ्लैट रहता है. 2 BHK 3 BHK फ्लैट रहता है, 2-3 करोड़ का फ्लैट रहेगा. इसे सीक्रेटली मम्मी के पास 1-1 करोड़ का ज्वेलरी रहेगा, बाकी थोड़ा बैंक में फिक्स डिपॉजिट रहेगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा. सब मिला के 4-5 करोड़ तो रहेगा ही. इंटेलिजेंटली पता कर लेने का हाउ सेफ इज योर फ्यूचर, लेकिन मेरा नाम नहीं लेने का है, बहुत गड़बड़ है प्लीज. ओके, अभी आते हैं मिस्टर डी. 100 करोड़ का एसेट, 10 करोड़ का लायबिलिटी, सॉरी 10 करोड़ का लायबिलिटी. चलो, सो अपर क्लास डेफिनेटली. ये लोग किधर रहेंगे? साउथ मुंबई में. और किधर रहेंगे? बैंड्रा में रहेंगे, साउथ मुंबई में रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, बिग लॉयर्स रहेंगे, एक्टर्स रहेंगे. ये सब लोग का अगर तुम बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट मतलब उनका कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, दे विल हैव crores of rupees. And then Mukesh Ambani kind of people are the ultra rich people. Why do you call them as ultra rich people? क्या ज्यादा है उनके पास एसेट. अब तुमको और एक एग्जांपल देता हूं. मिस्टर एफ का एग्जांपल ले लो. उसके पास एसेट से 20 करोड़ का, लायबिलिटी से 50 करोड़ का. बोलो ये कौन से क्लास में है? अबे ये किसी क्लास में नहीं है, ये उठा हुआ पार्टी है, ये बर्बाद पार्टी है. ये इसके पास रोड पे झोपड़ा भी नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ का एसेट है ने 50 करोड़ का लायबिलिटी है. ये पूरा बिक जाएगा ना तो भी पूरा पैसा मार्केट में पे नहीं कर सकता. हेलो, 20 करोड़ का एसेट मतलब मनी, और मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल इन फ्यूचर. 50 करोड़ का लायबिलिटी मतलब मनी इज पेएबल इन द फ्यूचर. व्हाट इज मोर आउट ऑफ द टू? लायबिलिटी. तो ये काय का मिडिल क्लास? तुमको क्या लगता है इसका 20 करोड़ के एसेट में से भी 1 रुपया पब्लिक छोड़ेगा क्या? ये पूरा का पूरा पैसा इधर चुका देगा ना तो भी इधर 30 करोड़ बाकी रहेगा. तो ऐसे लोगों को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन. क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट. डूबा हुआ, बर्बाद पार्टी. अपन कभी किसी को सोसाइटी में देख रहे हैं ना, ये तो पूरा बर्बाद हो गया, डूब गया. क्यों डूब गया? ऐसा होता क्यों है मुझे बताओ. 20 करोड़ के एसेट के सामने साला 50 करोड़ का लायबिलिटी हुआ कैसे? ऐसा उसने क्या किया? लॉस किया. या तो बिजनेस में लॉस हो गया, या तो गैम्बलिंग में पड़ गया रहेगा, बुरी आदतों में पड़ गया रहेगा, सब जगह से लोन लिया, दोस्तों से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, फिर सट्टा किया, क्रिकेट में पैसा लगाया, घोड़े पे पैसा लगाया तो घोड़े के पैर में कुछ लग गया, रोहित शर्मा पे पैसा लगाया तो 0 पे आउट हो गया. बेचारे का नसीब ही खराब है. जिधर पैसा लगाता है डूबता है. गैम्बलिंग किया, बिजनेस में पैसा लगाया तो गवर्नमेंट ने वो बिजनेस ही बंद कर दिया. हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी होता है. खाली इंसान को लॉस खाली सट्टा करने की वजह से थोड़ी होता है यार. बहुत टाइम अपना नसीब खराब रहता है. इमेजिन करो, मैंने बड़ा कोचिंग क्लास स्टार्ट किया,
और गवर्नमेंट बोलता है बस कोचिंग क्लास बंद करो, कोचिंग क्लास पे बैन डाल दो। ऐसा बहुत डिस्कशन चालू है आज, सचमुच चालू है। मुझे नहीं पता तुम लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो कि नहीं, बट बोलते हैं नहीं कोचिंग क्लास इज वेरी बैड। When such a fantastic education is there in school and college, what is the need of coaching class? ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, बावले साले, और नहीं तो क्या। ये बोलते कोचिंग क्लास बंद करो, भगवान नहीं करे समझो किसी गवर्नमेंट का दिमाग घुमा और बोला कोचिंग क्लास को बैन करो, तो क्या होगा? हमारे बिजनेस का लॉस हो जाएगा। विल वी बी इन टेंशन और नो? डेफिनेटली नो। व्हाई वुड आई बी इन टेंशन? मुझे जिन जिन लायबिलिटी को पैसा देना है, दे शुड बी इन टेंशन नाउ। क्यों? भागने का जरूरत क्या है? मेरे पास कुछ है ही नहीं। 20 लाख का एसेट है, 50 लाख का लायबिलिटी है। 20 लाख का एसेट उठा के बीच में रख दूंगा, आपस में बांट लो, मुझे क्या टेंशन है? किसका पैसा डूबा? जिसको मुझे पैसा देना था उसका पैसा डूबा, मैं क्या को टेंशन लेगा? बस खाना खा के मैं तो रात को सो जाएगा, वो लोग 2 बजे तक जागेंगे, आई ला अपना पैसा डूब गया। क्या? बिकॉज आई एम तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट। मेरे पास तो ये 20 करोड़ में से 2 रुपया बचने वाला नहीं है, तो मैं क्या को टेंशन लेगा? मैं तो रोड पे आ गया, बारिश में डांस करूंगा, मारी बैंड भागी गई, हूं तो उठी गयो। लॉस होना नहीं चाहिए, ये तुमको ध्यान रखना है। एक बार तुम इंसॉल्वेंट हो गए, योर वरीज आर ओवर। आपको जिसको जिसको पैसा देना था, उन बेचारों का पैसा डूबेगा, वो लोग रात को जागेंगे, तुम आराम से सो जाना। तुम तो ऑलरेडी बर्बाद हो गए, आप टेंशन लेके फायदा क्या है? हेलो, आर यू देयर? सो कैन वी कंक्लूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल क्लियर है? व्हाट इज एसेट? Money or money's worth is receivable in future. What is liability? Money or money's worth is payable in future. अभी लास्ट 3 मिनट है ना, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, यू विल हैव टू गिव मी द आंसर। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है कि इनकम है? 4 ऑप्शन दूंगा, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है? यू टू आंसर। एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस, फर्नीचर, एसेट, लोन गिवन, इनकम नहीं है, दैट इज रॉन्ग। लोन गिवन, asset is a correct answer because money is receivable in future. Bank loan, how did you know that is bank loan given or taken? Can we give loan to bank? अपन टाटा बिरला के खानदान से हैं, तो बैंक लोन का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस है, बैंक से हमने लोन लिया है। सो बैंक लोन टेकन, बोलो ये हमारे लिए क्या है? वाई लायबिलिटी? मनी इज पेएबल इन फ्यूचर। सेल ऑफ गुड्स, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, ये याद रखना। सेल ऑफ गुड्स इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। परचेस ऑफ गुड्स, expense, biggest expense. Rent paid, expense. Rent received, income. Rent receivable, डिफरेंस समझा? रेंट पेड रहेगा तो क्या? एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड रहेगा तो क्या? इनकम। लेकिन रेंट रिसीवेबल एसेट। और एक देता हूं, रेंट पेबल लायबिलिटी। मोटर कार, मोटर कार वह एसेट। गिव मी एग्जैक्ट रीजन why a motor car is an asset.
बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। देख, मैं बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे पैसे की जरूरत है और अगर मैं मोटर कार को बेचेगा तो क्या वो मोटर कार का मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर एक्सपेंस, वाटर बॉटल्स एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, कैमरा, कैमरा एसेट। वाई? बेचूंगा तो पैसा मिलेगा। डू यू एग्री? मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक का बिल पे नहीं किया, 1 महीने से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक का बिल आ गया लेकिन अभी तक उसका ड्यू डेट नहीं आया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल रहता है ना उसके ऊपर ड्यू डेट लिखा रहता है। तो मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक का बिल पे नहीं किया, सो इट इज व्हाट फॉर मी? लायबिलिटी। व्हाई इट इज लायबिलिटी? पेबल इन फ्यूचर। Hello, are you there? Bills receivable. Bills receivable asset. Bills payable liability. Hello, is it clear? Pakka? Yeah. So what are the new terms that we did today? Expense, income, asset, liability. We will continue in the next lecture. अब मुझे 2 मिनट, जो लोग का आज फर्स्ट लेक्चर था प्लीज हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5। हाँ, अब मुझे बताओ आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आया कि तुमको उसमें क्वेरीज है? तो है ना, तुमको टाइम टेबल में फिर भी मैं क्या करूंगा, आई विल कीप अ सेपरेट लेक्चर, ताकि तुमको जो भी छोटा छोटा क्वेरी रहेगा आई विल कॉल यू सेपरेटली एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, चलो बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीक।